Okay, good morning and welcome everyone to the review of this mock. So, before we let me first of all congratulate Nandini. Okay, because Nandini has scored 42 in this mock, and that has got a 99.8 almost percentile in VARC. So, which is by far so far, at least from whoever I've heard about their scores, is the highest in at least our batch. Sagar has also done exceedingly well. Sagar Punjabi has scored 36, and so he's got 99.23. Shubham has done also very well. Shubham scored 33. Shubham Yadav. So these are top three so far. I don't know about Swadha. This time Swadha has come back to me, nor have some of the others. So if at all you have, I mean, you can just sound out. So before we go further, just I wanted to congratulate these guys because this specifically was the toughest I would say mock so far. VARC, as far as VARC is concerned. So you've done well. Yes, Swadha. Yes, I think I did not send my score to you. I did really bad in this one. I got 16. Oh, okay. Yes, So let me first hear from you what went wrong, because you've been so far consistently scoring exceedingly yes. well. So when I looked at the mock for the first time, I could not identify that it would be like a really difficult one. So I was trying to tweak my strategy in this Right. to see Okay. if it works out. So I picked RCs first, and that went really badly for me. Okay. No, so good. See, it's a good learning. We'll hear from Sada, and of course we'll hear from Nandini also. Uh, so as to understand कि देखो क्या हमने गड़बड़ की और क्या हमें इस तरह की जो मौक अगर आ जाए तो उसमें how do we maintain our composure, because honestly when I also was going through it, so when I read the first two RCs, so I also could not make too much head or tail out of it. Okay, पहली जो दो RC थी, पहली तो फिर भी थोड़ी सी ठीक थी, सेकंड वाली का कुछ समझ नहीं आया. डाइवर्सिटी डिस्कोर्स आल्सो वाज नॉट अ वेरी यूजुअल डाइवर्सिटी वाले जो होते हैं वैसा नहीं था उसमें. Fourth RC was the only one where I found a little bit of a solace in terms of कि जो था वो समझ में आ गया था पूरा. तो from that perspective, yes. And then VA section also I would say okay, उसमें दो पैराजम्पल बहुत इजी थे, जो दो सही करने चाहिए थे हमें, एक इजी नहीं था, अभी हम उसकी बात करेंगे. एंड समरीज अगेन वर अ लिटिल चैलेंजिंग, एंड एक जो कंप्लीशन था वो काफी अब्सर्ड सा था, तो उसके बारे में बात करेंगे. तो ओवरऑल यस, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मॉक, वेरी डिफिकल्ट मॉक एंड नॉट एट ऑल इजी टू हैंडल. सो या बोलिए मानो. सर आपने हाईएस्ट स्कोर्स क्या बताया था? हाँ जी, हाईएस्ट स्कोर्स क्या बताया था आपने? हमारे बैच में अभी तक जो नंदिनी के 42 थे, और सागर पंजाबी के 36 हैं, और शुभम यादव के 33. Okay, so I'll just take you to this thing, the final thing. Okay, that gives us the idea of where we are. So if you see कि ये जो 59 ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है. अगर आप देखेंगे तो 13,455 लोगों ने इसको दिया था, जिसमें से roughly here we would have 99 percentile, right? Between 33 and 36, that means 34 on, roughly 34 onwards, we have 99 percentile. Okay, so अगर 34 पे 99 percentile है तो it is tough, yes. Because as you can see, the score has drastically dropped within the first 100-150. So 99 would be somewhere around 34. Okay. Then we have around 30 पे हमें 98 मिल जाएगा. 260 लोग समझो तो 250, 31. तो 31 और 30 के बीच में you can say we have the 98 percentile. ठीक है. So 98 percentile 30 पे आ गया. And then we have 400, मतलब यहाँ पे हमारा 97 percentile आ गया. And then going forward 95 percentile हमारा यहाँ कहीं 25 पे आ जाएगा. And then we have the 90 percentile somewhere around here, around 21. And cutoff, as is indicated, is around 18. Right? Cutoff is 18 here. Cutoff इसमें 18 बता रखा हूँ. ठीक है. Cutoff is 18. तो अगर आप देखेंगे तो overall
Now to get a 99 percentile, that means 33, 34. तो 33, 34 मतलब आपने अगर 15 क्वेश्चन किए और उसमें से 3 गलत हैं, तो आप ऑलमोस्ट 99 के ऊपर आ गए, ऑलमोस्ट, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वाला गलत किया. तो 15 क्वेश्चंस हमें छाटने हैं 99 परसेंटाइल पे आने के लिए, राइट. अब इस तरह के उसमें 15 क्वेश्चंस जो है छाटना है. तो ऑब्वियसली खाली एक आरसी से तो काम नहीं चलेगा, राइट. वी नीड टू लुक एट 8 VA questions and at least 2 RCs. So that is the way we will approach. Okay. Now, if you look at the VA, okay, so मैं तो VA से start करता हूँ. Okay, before I go ahead with VA and my explanations and all of that, let me hear from you all. What were your views when you came across this? आपका क्या view था, क्या आप? So let me first hear from Nandini. Okay, now Nandini scored 42. How did she handle? What was her strategy? Let's first listen from her. Yes, Nandini. Good morning, sir. So what I've realized with the verbal papers is that it's unpredictable, right? So I followed the strategy that we had been usually following with our classes, and like what you also told us that you could attempt verbal first. I usually did verbal first, but this time what I did was that I took the questions one by one. मतलब पहले I used to take up verbal और मुझे जो easy लगता था मैं वो करती थी, but I realized that उससे बहुत time waste होता था. That, you know, I used to look at questions and basis of just looking at the question, I used to make up my mind कि अच्छा ये tough लग रहा है. You looked at each question's merit and then decided to whether do it or not. Yes, but So that used to was waste not little working. time. Yeah, that used to waste a lot of time because मतलब skipping from one question to another also in that interface, that takes a lot of time. So I thought कि I'll go to VARC and I'll take one by one question. मतलब जैसे 17th question onwards it starts. So 17 to 24 and मतलब within the limit. So I took a limit of I think 13 to 14 minutes and I attempted as many as I could. तो उसमें I think 5 या 6 हो गए थे. Correct. And after that I was like I have to strictly go to RCs. After reading, going through the RCs and deciding the order, a concrete, like you said, one was concrete. So I started with that, and the others I found were fairly abstract only. So I was like, there's no option. So you have to attempt these. So which ones you ended up doing? Which of the RCs you did finally? Sir, I didn't do the second one. Other than that, I attempted all three. Other than that, you're in. So when you say you attempt all, you do all the questions in those, or you even leave questions? So, sir, what I did was that what I thought before taking the exam was ki one by one I'll go to the question, and if I get stuck, like if after a minute of looking at the question and going through it also I feel that, you know, I'm confused with it or I really can't think of, I'm not inclined towards one answer, then I'll go to the next question. But most questions I could make up my mind. I had an inclination, but for me that didn't work out very well also because whatever mistakes I made were in VA only. Okay, all right. So you did first, third and fourth RC, right? Which were a little concrete. Okay, good. So fine. So I think that's the you approached it in the right way, that you took each question one by one. You didn't waste time in picking or leaving the VA questions. That's the way we should do actually, and strictly keeping a time check on that, 13 minutes to max 14 minutes, and then rest of the time you take on passages. Now, one more point that let's say if there is some passage, okay, which we are not able to make too much sense of. So see, as I keep saying, don't try to unnecessarily try to understand each and every line of the passage or try to get a whole, whatever each and every idea that is being given over there. Okay, try to make sense. एक थोड़ा सा main idea type का लेने की कोशिश करो, and then go to the questions. And when you go to the questions, you will find that couple of those questions will be direct also. इस तरह के जो difficult passages होते हैं इसमें वो questions जो होते हैं उसमें तो 2-3 वो सीधे देता है. जैसे मैं आपको दिखाऊंगा इसमें से कि कुछ questions बहुत सीधे थे. तो अगर आप उस तक पहुंच जाते, थोड़ा सा अपना काम और कंपोजर रख के, तो आप एटलीस्ट वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते. Okay, so that is what we'll see as we go along. So anyone else would like to discuss their strategy or how they
said. Yes, Fada, go ahead. Sir, I had a question. So usually, sir, like the questions where I go wrong are the ones that I'm not very sure about, even when I'm marking the answer. But like if I'm about 70% sure about an answer, I usually mark it, and that has always like worked out in my favor. Even if like some are wrong, the Right. payoff is more usually. But Right. this is the only time where like I felt that if I would have not marked the questions that I was not sure about, I would have scored better. So like what No, is no, the no, no, deciding point if no, no. like we should? Your original strategy is all right. Okay, don't change it, because this mock was a little bit of an aberration. Okay, in the sense that if you see if you have gone through I mean, we are anyway doing some of the passages, but not as a complete test kind of a thing. But जैसे आप कैट के किसी भी स्लॉट का जिसको पिछले 6 साल के जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, अगर किसी भी कैट के एक स्लॉट का आप अगर VARC उठा के देखोगे तो see they give they don't give as dense all the 4 passages or all 3 passages as dense as that were given in this. Okay, they don't. They will Right, give you sir. 2 passages that you will be able to make good sense out of them. They will play around more with questions. They will make questions more trickier. Okay, कैट के जो पैसेजेस होते हैं उसमें 2 पैसेजेस रिलेटिवली इजी होते हैं टू मेक सेंस ऑफ, मतलब आपको उसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ वो खेल आपको करेंगे क्वेश्चंस में. तो इसलिए जो आपकी स्ट्रेटजी है वो ठीक है, उसमें आप चेंज मत करो. ये वाला जो था ये एक तरह से आई वुड कॉल इट एन एबरेशन. ओके, इसमें एक तो पैसेज ही ऐसे डेंस थे और ऊपर से क्वेश्चन भी उसने कुछ अलग ही तरीके के बनाए. Right, sir. But sir, I wanted to understand from you ki when, matlab, what is your strategy? Like, when do you leave a question after reading it also? Like wherever you read a question, obviously there is like, you can make some sense of it. You know the answer, but you don't know for sure. So when to leave it and when to go for it with the intuition? No, when you are absolutely not able to eliminate any other option. I mean, see, you need to zero down. Okay, the whole crux boils down in not really selecting the right answer, but eliminating the wrong answers. Right. So if you're not able to eliminate the wrong answers because of some reason or the other, if you are confused between 2 till the end, then you should leave. Okay, but if you have a fair, good sense that, okay, there is a little issue with this one also, then you can leave it. Okay, so we will see. इसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसमें जो है इसमें आप कौन कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे. और 1 2 3 में 2 3 4 क्वेश्चन थे इसमें से जो which were confusing and it was difficult to within that time crunch make sense out of them. तो उसको छोड़ देना उस टाइम ठीक होता है. इस तरह के जो टेस्ट होते हैं ना उसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम रखोगे तो फायदा ही होगा. There's no sense in being too ambitious. जैसे क्या था, जनरली हम सोचते हैं 3 RC तो करनी है हमें, इतने भी ये करने हैं, लेकिन अगर आपको पैसेजेस की डिफिकल्टी लेवल लगने लगेगी यार ये तो आप मतलब मेरे लिए नहीं तो सभी के लिए डिफिकल्ट, तो आपको वहीं पे अपना थोड़ा सा जो है ना अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए और अपना एम्बिशन नीचे कर देना चाहिए कि चलो 2 RC और सारे VA करेंगे, उसमें से लेट्स से अगर 16 क्वेश्चन भी करे या 15 भी करे तो उसमें से अगर आपके 3 भी गलत हुए तो यू वुड हैव गॉट 99 ऑलमोस्ट. राइट. तो होता क्या है कि हम उसी मोड में होते हैं कि नहीं हमें 18-20 क्वेश्चन राइट. उस चक्कर में क्या होता है कि यू कांट डू जस्टिस टू इवन दोस 2 RCs. अदरवाइज वो 2 RCs आप अगर थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो ना जो आपको करनी है तो यू माइट बी एबल टू सेल थ्रू. Makes sense. प्रॉब्लम उसकी होती है जब आप टाइम नहीं लगाते हो और जल्दी में I mean it is of course saying in hindsight is easy but doing that, but उसी की प्रैक्टिस करनी है. we have to practice more of that. Right, sir. ठीक है, चलिए. any other point of view? ठीक है, चलो. तो अब इसमें let me tell you how I went about it. Okay, so as I keep saying that I looked at the VA first. तो अब मुझे तो पहला क्वेश्चन ही देखो इसमें आसान मिल गया. See, this is also a lesson that people who started with RC in this test, okay, would be hard pressed to even say with confidence कि यार मेरा पहला सही क्वेश्चन कौन सा है. जैसे आप अगर इसको पढ़ना शुरू करोगे, at the close of the middle ages one of the main tasks is fresh orientation, great theological philosophical a priori, ये सब वर्ड ही ऐसे आ गए नासा ह्यूमनिस्टिक व्यू कि थोड़ा सा हमें लगने लगता है कि यार ये तो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट जा रहा है. ठीक है, ये इतना डिफिकल्ट था नहीं वैसे, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि अब आपने सेकंड वाला देखो. ठीक है, तो फर्स्ट वाला ठीक है आपने कहा कि हाँ कर सकते. सेकंड वाले में ये कौन सोलम इस तरह 8 ट्राइब पहले आ गया. और रीगल कौन है भाई, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में. स्टाइल आ गया फिर यहाँ पे. ठीक है, फिर डाइवर्स वर्क्स ऑफ आर्ट, कैपिटल, स्पेशियल, टेम्पोरल. नाउ दिस बिकम्स टोटली एब्स्ट्रैक्ट.
Okay, this becomes totally abstract, और इसको मतलब कि I would definitely not want to touch it in the beginning, क्या मतलब बाद में भी as far as possible I would not want to touch it. Then I would go to the third one, diversity discourse managers. तो ठीक है, ये business का कुछ है तो हमें sense it is more concrete. Okay, this we can relate to job applicants और equal opportunity हम कर सकते हैं, तो इसको हम रख लेंगे कि हाँ इसको करना है. And then we look at the fourth one. There are few things that have more changed our world in science discovery. तो ठीक है, साइंस के ऊपर है, लेकिन ये कोई ऐसा इसमें ऐसा कोई टर्म अभी तक दिखा नहीं है. ये कोई फॉस्टियन पैक जरूर दिख गया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं. It's not that difficult. इसको कर सकते हैं. तो then I immediately made up my mind to do 3, 4 and 1 and 2 in that order. Okay, कि अगर आने की जरूरत पड़ी भी यहाँ पे, तो otherwise 3, 4, 1 is how I would do the 3 RCs. But obviously that later. First I go to the VA, और मुझे पहली गेंद पे ही फुल टॉस मिल गई. Now this is a very easy question. Okay, we should get this correct. जितनी हमारी प्रैक्टिस हो गई है अब सारे जंबल्स की, ये क्वेश्चन उसके साथ. डू यू एग्री और नॉट? दिस इज अ सिटर. बताइए, है कि नहीं है? यस सर. मतलब इसमें देखो, ये बोल रहा है व्हेन वन फैमिली फाइट्स विद अनदर इट्स अ फ्यूड, व्हेन लॉट्स ऑफ फैमिलीज फाइट विद अनदर. तो वेरी क्लियरली 3 and 2 आर लिंक्ड. दूसरा कह रहा है कि द रीजन वाज प्लेस. कौन सा रीजन है? तो अपैलेचियन रीजन है. तो व्हाट वाज द कॉज ऑफ अपैलेचियन पैटर्न? द कंसेंसस रीच्ड इज एज दिस. तो 3, 2, 4, 1 इज अ वेरी इजी एंड अ वेरी क्विक आंसर इन दिस. सर मैंने पेयर बना लिया था, लेकिन 4-1-3-2 मार्क कर दिया. हाँ सर 3-2 पेयर था, 4-1 पेयर था, लेकिन सर 4-1-3-2 मार्क कर दिया कि 4 एक सवाल पूछ रहा है, उसके बाद 1 उसको एक्सप्लेन कर रहा है, 3 और 2 उसका कोई रीजनिंग. लेकिन इसका क्या मतलब है? आप ये बताओ. अच्छा चलो मेरे को कि आप ये बात बताओ कि ये आपने मार्क तो कर दिया, चलो 4 और 1, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई. अब आप बोल रहे हो कि मैंने 3 और 2. यार आप ये चीज सोचो ना, ये पैटर्न है और यहाँ पे पैटर्न, ठीक है. इवन लॉट्स ऑफ फैमिलीज फाइट विद वन अनदर इन आइडेंटिकल टाउन, द सेम, इट्स अ पैटर्न. व्हाट वाज द कॉज ऑफ अपैलेचियन पैटर्न? तो पैटर्न इज अ ब्रॉडर थिंग ना. देन यू विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक एरिया का पैटर्न, रीजन का पैटर्न. तो ये रीजन जो है ये अपैलेचियन, तो पैटर्न और अपैलेचियन पैटर्न. तो दिस कुड हैव गिवन यू द क्लू कि 2 हैज टू कम बिफोर 4, 2 कैन नॉट कम आफ्टर 4, राइट. तो इस तरीके से आप देख सकते थे, क्योंकि सेंसरी बन रहा है इसका. हाउ टू डिसाइड वेदर 3 and 2 विल कम फर्स्ट? क्यों 3 में तो व्हेन वन फैमिली फाइट इट्स अ फ्लूइड, व्हेन लॉट्स ऑफ फैमिलीज फाइट. ये तो बहुत, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको डिसाइड करने में कि 3 पहले आएगा कि 2 पहले आएगा. When one family fights with another, it's a feud. When lots of families fight, when 2 guys fight, it is this. When a group fights, it is this. तो इसमें कौन सा आएगा पहले? I thought second is broader than third, so I placed 2, 3, 4, 1. No, यार वो आपने गलत कर दिया है. ऐसे थोड़ी, क्यों आपने ब्रॉडर, मतलब ऐसे थोड़ी होता है. अच्छा आपने चलो 2 और 3 कर दिया, फिर उसके बाद में पैटर्न कहाँ आ गया? पैटर्न तो पैटर्न इससे लिंक्ड है, इट्स अ पैटर्न. What was the cause of appellation pattern? So this 2 and 4 are very clearly linked. Okay, so this was a sitter. Okay, this was a sitter. I would not excuse your not doing it correctly. Anyone, ठीक है, जिसका भी मतलब ये क्वेश्चन करना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन होना चाहिए. Okay, I mean I cannot really think of any reason why this question should not have been answered. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. चलो, let's not feel bad about it. Let's go to the next one. Okay, now this was a little more challenging. ठीक है, this was a more challenging one in the sense कि यहाँ पे translation की problem थी. कि translation, so almost all first-rate translators convey the story and spirit of this. But when we remember who famously labored, but then we remember Flaubert, who famously labored to find this, the right one. Even a cursory glance displays thousands of words. तो अब ये बताया कि मुश्किल क्या होती है ट्रांसलेटर को एक ट्रांसलेट करने में. ठीक है, तो ये इसने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक ही किसी वर्ब को 2 लोगों ने ट्रांसलेट किया, एक ही सेंटेंस को, तो किसने अलग अलग तरीके से कर दिया. ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम को बताया गया. तो 2 पॉइंट बताएं कि जो फर्स्ट रेट ट्रांसलेटर होते हैं ये तो कन्वे कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है. तो while good translators can do the job very well, it is difficult to convey the same impression that the original work will have. Okay, so ये उसको कैप्चर कर रहा है. A work can never hope to convey the same impression. ये गलत हो गया है. ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है almost all first-rate translators convey the story and spirit of the works at hand, capturing Bovary's yearning or Raskolnikov's torment.
तो ये गलत हो गया। ट्रांसलेशन कैन एक्सप्रेस ओनली द जिस्ट ऑफ द ट्रू स्टोरी बट नॉट द नुआंसेस ऑफ लैंग्वेज अकम्पनिंग इट। ऐसा भी नहीं बोल रहा है। इसमें तो फर्क बताया गया है कि एक तरफ अच्छे ट्रांसलेटर होते हैं, एक तरफ दूसरे होते हैं जो है डिफिकल्टी, लेकिन दूसरों का नाम सेकंड रेट ट्रांसलेटर नहीं दिया गया। जैसे डी में है, अब इसमें कुछ लोगों ने शायद डी मार्क कर दिया। तो ट्रांसलेटर प्ले अ सेंट्रल रोल व्हाइल सेकंड रेट ट्रांसलेटर यूजुअली हैंडीकैप अ फ्यू ऑफ बेस्ट और फर्स्ट रेट कैन ओवरकम देम। तो देखो ऐसा नहीं बताया हुआ है कि सेकंड रेट ट्रांसलेटर और फर्स्ट रेट। हाँ, फर्स्ट रेट ट्रांसलेटर बताए हुए हैं, लेकिन ये काम डिफिकल्ट है, वो उसने इनके थ्रू बताया है, लेकिन इनको सेकंड रेट नहीं बोला है। तो इसलिए फोर्थ गलत है और करेक्ट आंसर ए है। ओके रिद्धिमा बोलिए। यस रिद्धिमा है द फर्स्ट पॉइंट, बोलिए। सर इसमें मैंने मार्क तो ए ही करा, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट 3 मिनट्स लग गए। ठीक है, डिफिकल्ट है क्वेश्चन, थोड़ा टाइट 3 मिनट थोड़ा ज्यादा है, 2.5 मिनट में करना चाहिए। ओके सर। कोई बात नहीं, सी इफ यू गॉट इट करेक्ट देन इट्स फाइन, दैट्स अ गुड साइन। हाँ, 3 मिनट लगाने के बाद भी गलत कर दो तो फिर गड़बड़, ओके है सर। ना। ओके, एनीवन एल्स दैट अ पॉइंट? मानव का क्वेश्चन। हाँ मानव। सर बी वाले में इवन और सुपरफिशियल रेटिंग ये भी गलत है ना? क्या चीज? जो बी ऑप्शन है उस वाले में इवन और सुपरफिशियल रेटिंग वाला पॉइंट भी गलत है ना? ऐसा कुछ नहीं है। इवन सुपरफिशियल, हाँ हाँ गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं तो खैर एक गलती के बाद में आगे जाता ही नहीं। ठीक है, एक ही गलती दिखी तो उसमें खत्म। सर मतलब मैंने वैसे मतलब मुझे फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कॉन्क्रीटली मैं उसको निकाल नहीं पाता, तो मैंने फिर इवन वो पढ़ के फिर निकाला। तो आपने इससे निकाल दिया इससे इवन हाँ, सुपरफिशियल। इवन और कोई बात सुपरफिशियल। कोई बात। ओके अदिति बोलिए। सर हम सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन को नेवर एंड ओनली से कर सकते थे एलिमिनेट, मतलब हाँ उसके कर सकते, साथ वो भी कर है। सकते, कर सकते। ठीक है सर, ठीक है। Okay, now this is a very tough one. Tough in the sense that it still doesn't make any sense for me, the answer that they have given. Okay, they have Yes, given the answer I 4. attempted Okay. it twice or thrice, but I felt that I could हाँ, never place it in the second position. मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसने फोर्थ पे क्यों रखा है इसको। ठीक है, I had placed it at third. ठीक है। यस सर। है ना, तो हमने उसको 3 पे मैंने इसको रखा था, लेकिन मतलब मुझे तो 3 में भी कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा था ये, क्योंकि 3 में भी रिपीटेटिव लग रहा था कि यहाँ पे बोल रहा है कि एडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व एंड शी माइट हैव नो सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व। मुझे 3 में भी कोई बहुत मजा नहीं आ रहा था इसको रखते हुए, लेकिन सर मैंने सेकंड में रखा था। सेकंड में तो रखने का इसको देखो क्वेश्चन नहीं है। देखो आपने जैसे आपने ये लिखा हुआ शी माइट ऑल्सो हैव, ठीक है, तो अब आप इसको शी माइट ऑल्सो हैव, तो ये क्या इसमें ऐसा कुछ है क्या? A child's evaluative capacities are not sufficiently mature and developed for her to do the same. Now, what? Do the same means what? To endorse. Okay, to endorse. ये बोला ना, unlike the doctor who can step back and authoritatively endorse. A child's capabilities may not enable her to do the same. But she might also have no sense and she is therefore unable to access. अब देखो आप अगर ये बोल रहे हो she might have no sense of opportunity cost involved and not appreciate the time. And she is therefore unable to assess against a background of self-sufficient, realistic sense, competing, sufficient level of moral knowledge, etiquette, understanding of cost. ये already यहाँ पे हो चुका है डिस्कशन। तो मुझे लगा वो इवैल्यूएटिव जो कैपेसिटीज नहीं है देखो, she is के साथ में और she might also have was a better thing because ये might also have no. But anyway देखो हम इसमें we are discussing it without any sense because उसने तो 4 आंसर दे दिया। मुझे जो मैंने फोर्थ में क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ मेकिंग अ मिस्टेक और यहाँ पे लिखा हुआ सच मिस्टेक। ठीक है, सो दीज टू आर आई थॉट लिंक्ड, देयरफॉर व्हाई शुड वी हैव अ सेंटेंस इन बिटवीन दैट सेपरेट्स दीज मिस्टेक्स, सेपरेट दिस मिस्टेक एंड दैट मिस्टेक, राइट? बट उसके हिसाब से जो इसने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है उसमें ये कह रहा है कि ये भी मिस्टेक्स हैं इसमें, नॉट अप्रिशिएटिंग टाइम, टेकिंग अवे प्रेशियस टाइम, डूइंग समथिंग एल्स दैट इज बोथ वैल्यूएबल एंजॉयबल इज आल्सो मिस्टेक। तो उसके हिसाब से ये एक मिस्टेक और ये मिस्टेक मिलके सच मिस्टेक हो गया। तो आई डोंट रियली एग्री विद दिस एक्सप्लेनेशन, सो आई रिजर्व माय कमेंट्स हियर। चैतन्य, यस, व्हाट इज योर पॉइंट? Sir, I marked option 2 because I thought ki in the sentence that is given, they are saying that she might also have no sense of the opportunity costs involved. And right after the second option, like if I mark second, they say that and adequate understanding of the costs, risks, and opportunities involved. So I connected the 2 sentences that way. ठीक है, वो भी आपकी बात ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता था। She might also have no, she is therefore unable to assess such caring this thing.
दैट्स व्हाई शी माइट एंड अप गिविंग अनरीजनेबल। ठीक है, देखो हाँ 2 पे भी जैसे अदिति भी कह रही है 2 पे, तो 2 पे भी आ सकता था, बट मेरे को 2 में आने में प्रॉब्लम लगी। पर एनीवे उसका आंसर 4 है, तो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग कि 2 और 3 पे आएगा, उसने 4 पे लगाया, तो ठीक है, इट्स लिटिल अब्सर्ड बट आई कैन नॉट नाउ। यस बोलिए अदिति। सर आई थिंक 4 पे इसलिए तो नहीं आया बिकॉज इससे पहले उसने दैट्स व्हाई शी माइट बोला है, फिर एकदम उसके बाद माइट ऑल्सो ऐसे कनेक्ट हो रहा हो मे बी। आई एम थिंकिंग, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ नहीं नहीं वैसा नहीं है, वो ठीक है आपकी बात, ऐसा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या लग रही थी ना कि मेकिंग अ मिस्टेक, और उसके बाद में इस वाले में कोई ऐसी मिस्टेक नहीं दिख रही। She might also have no sense of opportunity cost involved and not appreciate the time caring for this will take away precious time doing something else that is both valuable and enjoyable. ठीक है, तो अब क्या ये मिस्टेक है? Such mistakes are not avoidable but a direct result of feature. तो इसको क्या मिस्टेक कहेंगे? मतलब I don't know, I don't agree. Yes मानव। सर मैंने सेकंड जब फेस करा था तो मैंने ये सोचा था कि जब सेकंड में फेस करे तो शी इज देयरफॉर करके सारी नेगेटिव बता रहा है, तो वो एक टाइप से मुझे लगा कि पूरा जो ऊपर बताया उसको एक बार बस लिस्ट कर रहा है, तो वहां ठीक से है, आपकी देखो आपकी बात सही है, आई एग्री, जैसे चैतन्य ने बोला, आदित्य ने बोला, आई एग्री, लेकिन पॉइंट ये है कि अब ये इसमें ना तो 2 है ना 3 है। ठीक है, तो इसलिए Yes, लेट्स sir. एंड द डिस्कशन। कोई फायदा नहीं है इसको डिस्कस करके, उसने 4th लगा रखा है, तो अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, है ना। बट आई ऑल्सो मार्क्ड इट, मैंने 3 मार्क किया, दैट वाज Yes, sir. माय मिस्टेक। चलो ओके, नाउ दिस वाज अ लिटिल मोर चैलेंजिंग फॉर एग्जांपल, इसमें आपको 3 और 4 तो आप कर लोगे। ठीक है, द म्यूजिक वी कॉल जैज अरोज इन दिस, grounded in the music known as this new music. Okay, so this new music, तो अभी आपने इंट्रोड्यूस किया है जैज को लेट 19th सेंचुरी में, और उसके बाद दिस न्यू म्यूजिक, तो 3 और 4 बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्टेड। अब आपके पास में बचे 1 and 2, तो जेरल्ड्स Horn's jazz injustice examines this and political that shaped this music into a phenomenal US and Black American contribution to organized arts and culture. तो इसका explanation फिर इसने इसके थ्रू दिया है कि jazz musicians battle organized crime. Why this? ये जो इसने shaped this into a phenomenal US this thing contribution, इसका explanation इसने second में दिया है. The Ku Klux Klan and other variously malignant forces dominating the nightclub scene where jazz became known. तो इसलिए 3, 4, 1, 2 was the order here. इसमें शायद कुछ लोगों ने 3, 4, 2, 1 लगाया है। Yes, शुभांगी। So, the name given in the first, is that a title of a book? Yes. Should that not come first because you're talking about the book? No, but see, first of all, you've not even introduced. Okay, you've not even introduced jazz. तो आपको मतलब आप पहले तो आप जिस जैज की बात करोगे, आप पहले उसकी बात करोगे ना, आपकी ये कब हुआ, मतलब क्या था, हाउ डिड इट स्टार्ट। ओके, अब आप अगर फर्स्ट को पहले लगा दोगे कि जेरल्ड हॉर्न्स रेसिज्म एंड दिस एग्जामिन्स दैट शेप्ड, सबसे पहले तो दिस म्यूजिक। ओके, अब दिस म्यूजिक कौन सा म्यूजिक है? डू यू थिंक दैट दिस जैज एंड जस्टिस वुड रेफर टू दिस म्यूजिक? See, ये जो अब racism and political economy of the music examines the economic, social and forces that shape this music. तो ये this music है और ये जो this new music है, ये basically एक link है ना? तो the music we call jazz arose in this, grounded in the music known as blues, and then we go to 1 and then we go to 2. So this is how this would be closed. Yes. Anyone else has a query? Sir, 3 और 4 तो मतलब पेयर मिल गया था, उसके बाद जैसे कि 4 में दिया है कि दिस म्यूजिक एंटर्ड द वर्ल्ड, इससे, और फिर फर्स्ट में दिया है कि हाउ दिस म्यूजिक शेप्ड मतलब यूएसएस कंट्रीब्यूशन टू आर्ट्स एंड कल्चर, तो फिर वर्ल्ड और यूएस से फिर मैंने 4 और 1 कर लिया कनेक्ट। ठीक है, ठीक है, एंड देन यू गॉट दिस ना 3, 4, 1. हाँ ठीक है, ठीक है, यू कैन डू दैट. यस, चलिए. Okay, now this fellow says language of Europe is in translation. European Union is proud of everyday multilingualism, which becomes more fluent. But yet the adoption of English as a common language should not be seen as a challenge, but a complement to this tradition. Europe is about diversity, and its patchwork of non-languages and dialects must be promoted and protected, but it is also about sort of unity that is also possible with a common tongue, even imperfectly spoken. Universalizing English while upholding EU's native language would not be a betrayal of cosmopolitan European ideal, but its offer. तो अब ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, सिंपल इसका आर्गुमेंट ये है कि यूरोपियन यूनियन की जो
क्योंकि देखो यूरोपियन यूनियन में जितने भी 30-31 जितने भी देश हैं तो वो सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं मोस्टली। तो वो जो उसकी जो मल्टीलिंगुअलिज्म है दैट इज वेरी दे फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। बट ही सेइंग दैट कि अब आप अगर एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश को बना दोगे तो इट विल नॉट डाइल्यूट दैट, इट विल नॉट बी सीन एज अ चैलेंज टू दैट मल्टीलिंगुअलिज्म, बट इट विल कॉम्प्लीमेंट इट। ओके, सो इसकी जो लैंग्वेजेस है सभी की वो तो हमें प्रोटेक्ट करनी प्रमोट करनी है, लेकिन एक यूनिटी भी चाहिए जो कि एक कॉमन टंग से आ सकती है। तो अगर हम इंग्लिश को इसमें अपना लेंगे तो इट वुड नॉट बी अ बिट्रेयल ऑफ कॉस्मोपॉलिटन यूरोपियन आइडिया। तो बेसिकली दिस passage argues about inclusion of English as a common language of EU and says that it should not dilute the multilingualism and cosmopolitanism of EU. ये इसका मेन आइडिया। अब बताइए कि ये मेन आइडिया से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। सो इन ऑर्डर टू लिव अप टू इट्स कॉस्मोपॉलिटन आइडल EU मस्ट अडॉप्ट, देखो ये मस्ट अडॉप्ट गलत है। ओके, ऐसा नहीं दिखा इसने तो कहा है कि भाई EU को अगर इंग्लिश अडॉप्ट कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसके लिए ये नहीं है कि दिस इज अ मस्ट, करना ही पड़ेगा उनको गन पॉइंट पे, तो ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। द कॉस्मोपॉलिटन आइडल ऑफ यूरोपियन यूनियन विल नॉट बी अंडरमाइंड बट रादर बी रीअफर्म बाय मेकिंग इंग्लिश द कॉमन टंग। दिस लुक्स ओके, ठीक है ना, ये मतलब अभी इसको रख लेते हैं। इफ यूरोप हैज टू अचीव यूनिटी इन डाइवर्सिटी इट हैज टू अडॉप्ट, ये भी वही गन पॉइंट वाली लैंग्वेज आ रही है कि इसको करना ही पड़ेगा। तो ये देखो ये दोनों ए और सी तो ऐसे ही निकल गए, ये मस्ट और हैज टू। While machine translation tools have aided use multilingual, ये machine tools तो यार just उसमें more fluent and accessible बोला है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये central point हो गया। Universalizing English will take it one step further by complementing the baby of languages. So he is not saying that it will take it one step further. He is saying that it will complement. Okay, it will be a perfect complement. And this machine tools is not at all an idea that can be taken to be the central to this thing. So basically ये इसको भी हटा देंगे और बी को हम मार्क। Does it make sense? सर एक बार डी का बता दो एलिमिनेशन। मैंने डी मार्क किया था क्योंकि इसने मतलब इस ऑप्शन में सारे कवर हो गए थे पॉइंट्स, तो इस वजह से। नहीं, देखो इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म जो है और कॉस्मोपॉलिटनिज्म, कॉस्मोपॉलिटन इज अ ब्रॉडर वर्ड देन मल्टीलिंगुअलिज्म, दैट इज नंबर 1। दूसरा, ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म एड हुआ है बिकॉज ऑफ मशीन ट्रांसलेशन, ये एक नैरो व्यू, ठीक है। और दूसरा यूनिवर्सलाइजिंग इंग्लिश, यूनिवर्सलाइजिंग मतलब क्या होता है? तो यूनिवर्सलाइजिंग इंग्लिश तो चलो इसने बताया हुआ है, व्हाइल अपहोल्डिंग यूज नेटिव लैंग्वेज वुड नॉट बी अ बिट्रेयल ऑफ कॉस्मोपॉलिटन आइडल बट इट्स अफर्मेशन। तो ये इसका अफर्मेशन है। तो हाउ डू यू से इट इज वन स्टेप फर्दर बाय कॉम्प्लीमेंटिंग? तो वन स्टेप फर्दर कहीं उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है कि ये और स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो वन स्टेप फर्दर इज नॉट अ वेरी करेक्ट लैंग्वेज टू यूज। दूसरा, मशीन टूल ट्रांसलेशन इज नॉट रियली अ बिग आइडिया हियर, ही इज ओनली सेइंग दैट कि ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है ये और फ्लुएंट और एक्सेसिबल होता जा रहा है क्योंकि मशीन ट्रांसलेशन टूल आते जा रहे हैं। ओके, इट्स प्राउड ऑफ इट्स मल्टीलिंगुअलिज्म। दिस कुड बी अ फैक्टर दैट इज एडिंग इट, but this is not a main idea that you would include it in this summary, क्योंकि वो ये कह रहा है कि भाई आपको इंग्लिश डालने से आपका कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड डाइल्यूट नहीं हो। ओके, आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश को जो चैलेंज है कि अडॉप्शन ऑफ इंग्लिश एज अ शुड बी नॉट बी सीन एज अ चैलेंज बट एज अ कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो लोग इंग्लिश को ऐसे बोलते हैं यार ये इंग्लिश आप लाओगे तो ये तो हमारा कॉस्मोपॉलिटन जो है ये डाइल्यूट हो जाएगा, वो कह रहा है ऐसा नहीं हो, ये बल्कि कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विल नॉट बी अंडरमाइंड। so this is not capturing, इसलिए 2 is a better item than 4. ओके सर। ओके, अब ये एक दूसरा पैसेज था जो इजी था। ओके, ये दूसरी फुल टॉस। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, बताइए कितने लोग एग्री करते हैं? यस हाँ, फुल टॉस की नहीं था ये। देखो ये तरीके फुल टॉस जो मिलते हैं तो इसे हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ओके, these delusions obviously cannot start. The main feature of this disorder, delusional disorder, these delusions. Okay, तो आपके पास में एक में दिया हुआ delusional disorder, दूसरे में दिया हुआ main feature of this disorder. तो 3 और 2 बहुत clearly linked है। फिर उसके बाद में these delusions mainly involve और these also involve. तो mainly involve और also involve 4-1, काम खत्म। फिर 10 seconds, इसमें कुछ करना ही नहीं।
Yes. तो आई होप कि ये दो जो थे, देखो जो दोनों ये पैराजम्पल थे ना, ये बिल्कुल आप उसने हाथ में रख के दिए, ये करेक्ट करने चाहिए। आगे चलते हैं। No, this was not difficult. Okay, this was not difficult. The history of science shows that major scientific revolutions typically occur without such incentives. Think of Nicholas Copernicus, Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein. पहले पे तो आ ही नहीं सकता ये, क्योंकि इसमें such incentives, क्या incentives? So it cannot come. So policy level change for which some argue is to reduce or eliminate the intellectual property protection of medical intervention. This would have several consequences. It would obviously mitigate the financial incentives that appear to be corrupting medical science. तो ये कह रहा है भाई हमें पॉलिसी लेवल चेंज लाना पड़ेगा कि आपको जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है प्रोटेक्शन और मेडिकल इंटरवेंशन, ये आपको खत्म करने पड़ेंगे या रिड्यूस करने पड़ेंगे। क्यों? और इसके काफी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि जो लोग जो फाइनेंशियल इंसेंटिव लोगों को मिलते हैं ओके करप्ट करने के लिए मेडिकल साइंस, वो खत्म हो जाएंगे। इट वुड प्रोबेबली आल्सो मीन दैट न्यू ड्रग्स वुड बी चीपर। देखो क्या होता है कि आज की तारीख में कोई भी कंपनी अगर एक नया इनोवेटिव इंटरवेंशन या कुछ लेके आती है, जैसे अगर आपने जितनी भी वैक्सीन वाली कंपनीज थी, फाइजर हो गई या जो भी थी, जितनी भी थी, तो दीज कंपनीज मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज दे जो आईपीआर होता है इनका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सो दैट इनेबल्स देम टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन समथिंग व्हिच इज अ डिसरप्टिव मेडिकल इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये इसके कारण मेडिकल साइंस करप्ट हुई है, तो हमें इसे हटा लेना चाहिए, कम कर देना चाहिए। तो अब ये यहाँ पे the history of science show that major scientific revolutions typically occur without such incentives. तो अब ये such incentives तो हो सकता है कि we might think that we can put it on second, right? ऐसा second पे incentive और such incentive आप कर सकते हो, but let's evaluate further. Certainly the antics of such people as Martin Shkreli, who raised the price of life-saving drug Daraprim used by people with suppressed immune system for 13 to 750 would be impossible. तो अब ये कह रहा है कि इसके कारण कि ये जो ऐसे लोग हैं जो कि उस पे अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो देखो हिस्ट्री ऑफ ये सच इंसेंटिव को तो इससे इंसेंटिव कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस का इस सेकंड वाले से इससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल दे रहा है कि जो फाइनेंशियल इंसेंटिव करप्ट कर रहे हैं मेडिकल साइंस, वो एग्जाम्पल इसने यहाँ पे दिया। तो अभी आपने अगर ये लिखा होता, अगर आपने ये बीच में डाल दिया होता, तो फिर आपको ये वाला सेंटेंस यहाँ पे नहीं आता। ओके, यहाँ पे फिर कुछ और आता, तो इसलिए ये सेकंड पे नहीं आएगा। Would it also mean that there will be less innovative medical research and development? This is a tired argument often raised to defend intellectual property laws. वो कहता है कि तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये इंसेंटिव हटा दोगे तो लेस इनोवेटिव मेडिकल रिसर्च और डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने ये जो मेडिसिन कंपनीज हैं, इनको भी तो पैसे चाहिए रिसर्च करने के लिए, तो इसका मतलब है कि ये लोग बेचारे रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो वो कह रहा है नहीं, ये थका हुआ आर्गुमेंट है जो कि प्रॉपर्टी लॉज को डिफेंड करने के लिए दिया जाता है। लेकिन इस आर्गुमेंट में बहुत सीरियस प्रॉब्लम अब आएगा ये कि हिस्ट्री ऑफ साइंस शो दैट मेजर साइंटिफिक रेवोल्यूशन अकर विदाउट सच इंसेंटिव। ठीक है, कि बिना इंसेंटिव के मेजर रेवोल्यूशन हुए। Breakthroughs in medicines are no different. The most important breakthroughs in medical interventions. तो अब ये देखो, ये linked है. You cannot put it at 4 because these breakthroughs in medicines are no different, or topmost breakthroughs in medical like antibiotics and all of these were developed in social. So ये linked है, so it cannot come at 4, so it has to come at 3. So does it make sense? Yes. ठीक है, तो आई होप कि ये ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इजी, आई वुड से, बट मॉडरेट डूएबल थे। यस अनुष्का, Can you please explain again why it can't come in second position? Because I placed it over there. मैंने वहाँ पे उसे मतलब उसे इंसेंटिव से कनेक्ट किया। ठीक है, ठीक है। तो देखो आपने सही किया कि ऐसा हो सकता है कि ये सेकंड पे आएगा कि हिस्ट्री ऑफ साइंस शो दैट मेजर साइंटिफिक रेवोल्यूशंस अकर विदाउट सच इंसेंटिव्स। तो अब अगर आपने यहाँ पे ये दे दिया है, तो आप इसके बाद में ओके यू वुड वांट टू फॉलो दिस अप विद सम सेंटेंसेस दैट से कि द डायरेक्शन वुड बी टू शो दैट हाउ दीज ब्रेकथ्रूज कैन अकर विदाउट दिस इंसेंटिव, ओके, और टू एक्सपैंड दिस थॉट फर्दर कि इतने सारे रेवोल्यूशन हुए बिना इंसेंटिव के,
तो या तो वो अगले सेंटेंस में इनके रेवोल्यूशन की बात करेगा या इससे कुछ और कनेक्ट करेगा जो कि इसी तरह का थॉट हो कि हाँ बिना इंसेंटिव के भी बहुत सारे अर्थ शैटरिंग चेंजेस या इनोवेशंस हुए। इट विल नॉट टॉक अबाउट दिस मार्टिन सिक्रेली के जिन्होंने कि इतना ज्यादा बढ़ा दिया। इस सेंटेंस का मतलब कोई मीनिंग नहीं रहा ना इसके बाद में। फिर certainly the antics of people such as Martin Shkreli would be impossible। तो अब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि हिस्ट्री ऑफ साइंस जो कि बहुत सारे जो रेवोल्यूशन है वो बिना इंसेंटिव के होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया जिसमें आप एग्जांपल दे रहे हो एक रेवोल्यूशन का जो जिसके कारण लोगों को $13.5 से $750 देने पड़ रहे हैं। तो इस सेंटेंस का तो इससे लिंक है ही नहीं ना। हाँ आपकी बात मैंने मानी कि सच इंसेंटिव को आपने इससे कनेक्ट कर दिया, एग्री, बट दिस सेंटेंस डजंट मेक एनी सेंस आफ्टर दिस, है ना। क्योंकि हम एक तरफ बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इतने सारे रेवोल्यूशन हुए हैं बिना इंसेंटिव के, तो अगला सेंटेंस हम या तो उन रेवोल्यूशन की बात करेंगे जो बिना इंसेंटिव के हुए हैं या फिर उसके पैरेलल की बात करेंगे कि देखिए इन फील्ड में भी बिना रेवोल्यूशन की बिना इंसेंटिव के हुए हैं। जैसे इसने कहा यहाँ पे कि ब्रेक थ्रू इन मेडिसिन आर नो डिफरेंट, ये देखो ये कनेक्ट कर रहा है इससे कि मेजर साइंटिफिक रेवोल्यूशंस टिपिकली अगर विदाउट इंसेंटिव इन नेचुरल साइंसेज, breakthrough in medicine are no different. The most important breakthrough in medical interventions that were completely unlike the context of pharmaceutical products. तो ये सब जो हुए थे तब कौन से इनको इंसेंटिव मिलते थे? So these breakthroughs were radically effective unlike most of the blockbusters too. So he's basically यहाँ से इसने अपना पूरा टोन चेंज कर दिया। So I hope you understand why this cannot come at 2. So इसमें मतलब मुझे ये समझ नहीं आया था इसका मेन आइडिया ही क्या है। बस मैं तो वो इंसेंटिव पर देखा था कि हाँ वो बेस्ट होगा, इसलिए मैंने सेकंड पे प्लेस कर दिया। बट अभी मुझे इसका मेन आइडिया क्लियर नहीं हुआ कि मतलब वो एक फ्लो ऑफ आइडिया क्या है, इसको इसे बोलना इसका मेन आइडिया ये क्या है, चाह रहा है पैसेज के नहीं थ्रू। ये पैसेज में ये कहना चाह रहा है कि जैसे एक कंपनी है, ठीक है, आपने सपोज करो कोई एक दवाई बनाई जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी दवाई है, ठीक है। अब आप उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो आपके पास होते हैं, तो आप उसके लिए कुछ भी कीमत चार्ज कर सकते हो, राइट। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हमें एक ऐसा चेंज लाने की जरूरत पड़ी है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं जो कि इतना ज्यादा इनको बेनिफिट लेने के ऊपर वो कर देते हैं, ये या तो हटा दिए जाएं या एलिमिनेट कर दिए जाएं। उससे क्या होगा कि जो इस तरीके के लोग हैं मार्टिन सिक्रेली जो कि $13.5 की पिल को 750 में बेच रहे हैं, इनका ये खत्म हो जाए। और तो अब इसको फिर उसने आगे बढ़ा के बोला कि लेकिन लोग कहेंगे कि यार ये तो गलत है, क्योंकि ये जो पैसा आता है इसी से तो कंपनियां R&D करती हैं, इसी से तो वो नए नए डिस्कवरीज करती हैं, फिर वो कैसे करेंगे। तो बोलता है लेकिन ये थका हुआ आर्ग्यूमेंट है। जो हिस्ट्री बताती है साइंस की, मेजर साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो हुए हैं उसमें तो कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं मिले। न्यूटन को तो किसी ने पैसे नहीं दिए, कॉपरनिकस को तो किसी ने पैसे नहीं दिए, डार्विन को और इनको तो किसी ने नहीं दिए। उसी तरह से मेडिसिन में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मेडिसिन भी डिफरेंट नहीं है, ये जो एंटीबायोटिक्स इंसुलिन बनी थी तब तो किसी कंपनी ने इतने पैसे नहीं कमाए। तो वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर ये कह रहे हो कि ये जो इंसेंटिव हटा देंगे तो R&D होना बंद हो जाएगी, ये गलत और थका हुआ ये है इसका। Yes, now it's clear. ठीक है, चलिए। Yes. Okay. When we think of education and equality, we first tend to think of distributive। अब यहाँ पे देखो इसमें ये बोल रहा है कि जो इक्वालिटी की बात होती है, हम सोचते हैं कि जो एजुकेशन से जो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग हमें देता है, ओके, जो भी टेक्निकल नॉलेज बताता है उससे हम इक्वालिटी अचीव कर लेते। लेकिन सिविक कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन अलग तरीका है एजुकेशन और इक्वालिटी के बीच में समझने का। इसमें ये रिकग्निशन होना चाहिए कि फेयर इकोनॉमिक आउटकम्स आर एडेड बाय रोबस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड देयरफॉर बाय जेन्युइन पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब इसमें जो फेयर इकोनॉमिक आउटकम्स हैं वो खाली आपको एजुकेशनल टेक्निकल स्किल्स से ही नहीं आ जाएंगे, उसमें आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी समझनी पड़ेगी, तब जाके जेन्युइन पॉलिटिकल इक्वालिटी आएगी। Thus, education focused not merely on technical skills but also on participatory readiness provides a distinct and better way to promote equality through schooling। तो अभी क्या है, हम स्कूलिंग में टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ा के सोचते हैं कि इक्वालिटी हमने अचीव कर ली, लेकिन वो कहता है कि और बेटर way to promote equality is to include this participatory readiness or democratic process also in this particular education। ठीक है, तो करंट जो एजुकेशन है वो हमें टेक्निकल स्किल्स देती है, उससे हम इनकम इनइक्वालिटी अचीव करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस का तड़का भी डाल दो, डेमोक्रेसी ये सब चीजें भी सिखा दो, पार्टिसिपेटरी रेडीनेस सिखा दो उसको,
ये भी ऐड कर दो इसमें, तो आपको जो इक्वालिटी मिलेगी दैट विल बी बेटर देन दिस इक्वालिटी वुड बी ग्रेटर देन दिस इक्वालिटी, बेटर वे टू प्रमोट इट। ओके, वो ये नहीं कह रहा है कि इससे इक्वालिटी नहीं मिलती, लेकिन अगर ये भी डाल दोगे तो इससे बेटर इक्वालिटी मिलेगी। तो ये कहाँ पे है, किसमें है? सी ऑप्शन। ए, बी और डी कैसे रूल आउट करें देखते हैं। While income inequality may be resolved through a vocational approach to education. This is fine, यहाँ तक ठीक है ये। Political equality can only be attained. देखो एक तो यार इस तरह के वर्ड जब आ जाए ना तो आपका एंटीना खड़ा हो जाए। You should get an alarm कि political equality can only be attained through wider understanding. दूसरा, वो ये खाली दोनों के अंदर डिस्टिंक्शन ही नहीं करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जो इक्वालिटी हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आएगी वो बेटर होगी खाली एक इनकम इक्वालिटी से, इनइक्वालिटी से। तो इसलिए ये बेसिकली गलत है दो फ्रंट पे, ये सेकंड पार्ट इसका गलत। While a vocational solution advocates equal educational attainment to reduce income inequality, ये भी ठीक है। It isn't as effective as enhancing the political awareness of citizens. अब इसमें क्या दिक्कत है? It isn't as effective as enhancing the political awareness of citizens. उसमें क्या प्रॉब्लम बताइए? ये ठीक लग रहा है? गलत है आंसर तो ये, तो इसमें क्या गलती है? सर ये मतलब वो उल्टा ही बोल रहा है, डिस्टॉर्ट करके बोल रहा है। उसने ये बोला था पैसेज में कि पॉलिटिकल अवेयरनेस रहेगी तो फिर वो एजुकेशन में एड करेगा, और यहाँ पर वो अलग ही चीज बोल रहा है। इसको इसने ये नहीं बोला है कि ये कहाँ पे दी जाएगी ये पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये तो इन जनरल बोल रहा है ना, एजुकेशन में कहाँ इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहा है, isn't it? ये कह रहा है इट isn't as effective as enhancing the political awareness, और पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात हो रही है या पार्टिसिपेटरी रेडीनेस की बात हो रही है, इन दोनों में भी फर्क है। तो दिस इज रॉन्ग ऑन टू काउंट्स। वन इज दैट दिस फेलो इज नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ आर यू गोइंग टू एनहांस द सिटीजन, मतलब क्या है, सिटीजन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं एजुकेशन, जो एक स्टूडेंट है उसको कैसे आप थ्रू स्कूलिंग, ये सिटीजन तो ये तो पेपर पढ़ के भी पॉलिटिकली अवेयर हो सकता है, तो ये गलत है। दूसरा, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट नहीं करनी, आपको उसको पार्टिसिपेटरी रेडीनेस बनानी कि वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सके, ओके, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। तो ये इसलिए ये गलत है। Focusing merely on technical skills of individuals will not be enough to reduce inequality, as individuals should also be trained, more importantly, for participation in democratic processes. Okay, यहाँ पे ट्रेन कर रहा है participation in democratic processes. So this looks a better answer than B. Education can promote equality only when we shift. Again, ये only word आ गया. Okay, तो ये यहाँ पे वैसे ही गलत है. C is the right answer. I hope it's clear to all. Yes, sir. We go over the difficulty level of each VA question. Sure. तो VA question के difficulty level देखते हैं. This was very easy. ठीक है. This was yes, this was difficult. This was absurd. Okay, so इसको I will not read it. This was moderate. This was again moderate. I would not call it difficult. ये easy. This is again moderate, and this is little difficult. So this is the, तो चार आपको 4-5 सही 5 सही देखो इसमें कर सकते थे। मेरा अगर एक अच्छा सेक्शन इसको करना है तो जैसे ये वाला हमारा करेक्ट हुआ, ठीक है, ये तो चलो छोड़ो, ये वाला कर सकते थे, ये करेक्ट। 3 में से 2 पैरा जंबल आपके सही हो जाते, एक आपका ये सही हो जाता कंप्लीशन, और 2 आपके समरी सही हो जाती, तो देन यू वुड हैव हैड अ गुड सेशन। ओके, चलो पैसेज पे चलें बिफोर वी और एनी अदर क्वेश्चन। अब देखो ये जैसे कि ये पैसेज में घुस के ही
थोड़ा सा आई वाज आल्सो टर्न्ड ऑफ कि पहले और दूसरे जो है, मुझे पहला वाला थोड़ा ठीक भी था, लेकिन दूसरा वाला जो था वो बिल्कुल ही अजीबो गरीब था, और तीसरा वाला ठीक है, और चौथा वाला ठीक था। तो 3 4 1 2 ऐसा मैंने कहा था। सो लेट्स टेक द थर्ड फर्स्ट। तो थर्ड में अब क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आई नॉट गेट टू डीप इनटू द पैसेज। थर्ड में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डाइवर्सिटी डिस्कोर्स है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि आप बेसिकली बोलते हो कि जो भी अप्लाई करेगा, तो वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट देम ऑन द बेसिस ऑफ any differences, okay, whether it is their race or gender or ethnicity or upbringing or circumstances or whatever it is. लेकिन डाइवर्सिटी जो होती है वो थोड़ी सी और आगे होती है। डाइवर्सिटी में यू एक्टिवली सीक टू हैव पीपल हु आर डिफरेंट, ओके। तो डाइवर्सिटी डिस्कोर्स मतलब क्या होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और आगे बढ़ बढ़ के ऐसे लोगों को रिक्रूट करो जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। एक तो सिचुएशन ये हो गई कि जो अप्लाई कर रहा है, जैसे 1000 एप्लीकेशन आई, तो उसमें डिस्टिंक्शन मत करो आप, लेकिन डाइवर्सिटी एक स्टेप आगे जाता है। वो कहता है कि आप आगे बढ़ बढ़ के यू सीक मोर एंड मोर सच एप्लीकेशंस। तो इट इज वन स्टेप फर्दर अहेड फ्रॉम द इक्वल अपॉर्चुनिटी। और ये बोलता है कि इट इज प्राइमरी एम्ड एट मैनेजर्स हु आर स्केप्टिकल अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम बताई गई। हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज द सेम एज सिलेक्शन मेरिट, करेक्ट। तो अब ये कह रहा है कि जो डाइवर्सिटी है, दिस इज नॉट ओन्ड बाय ऑर्डिनरी एम्प्लॉइज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इंडीड दिस इज ऑफन डीम्ड बाय डाइवर्सिटी प्रोपोनेंट्स टू बी वन ऑफ इट्स strengths over traditional equal opportunity approaches because it supposedly depoliticizes the issue. In effect, this is a fallacy because the issue remains political. Control of policies and practices have always resided with management, but diversity extends this to cover the discourse of quality. तो अब ये कह रहा है कि आपने कहा कि भी डाइवर्सिटी जो है वो मैनेजर्स जो है वही संभालेंगे, तो इससे इशू डीपोलिटिसाइज हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि ये फैलेसी है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस तो मैनेजमेंट के हाथ में रहे हैं, और डाइवर्सिटी से ये भी एक्सटेंड हो गया। फिर एक ये जनोनी और जैनसन से इन्होंने कोई रिसर्च करी है। इन्होंने कहा है कि मैनेजर्स दे इंटरव्यूड रिसोर्टेड टू स्टीरियोटाइप्स टू एक्सप्लेन डिफरेंसेस और इंटरेस्टेड ओनली इन हाउ सच डिफरेंसेस कुड बी डिप्लॉयड इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। So differences were considered by them as deficiencies and therefore provided a managerial rationale for not appointing and promoting. In other instances, differences were interpreted as vulnerabilities, and consequently, such employees were considered to be more compliant and malleable to managerial demands. So, diversity is conceived in a very selective and instrumental way with respect to productive process in specific organizational context. तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो, ये जो डाइवर्सिटी की जो बातें होती है, लेकिन ये जो हमने मैनेजर्स को इंटरव्यू किया है, तो ये तो क्या करते हैं कि जो डिफरेंसेस होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए स्टीरियोटाइप्स का सहारा लेते हैं, और उसके बाद में उन डिफरेंसेस को कैसे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाए अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को लेने के लिए, सिर्फ उसी में इंटरेस्टेड होते हैं। तो और ये जो डिफरेंसेस हैं ये कई डेफिशिएंसीज है। जैसे इसको अब सपोज करो देयर इज अ वुमन, ठीक है, तो वो कहेगा भाई देखो वुमेन कैन नॉट ट्रैवल, तो इसको सेल्स में नहीं डालेंगे हम। तो उसने उसका एक स्टीरियोटाइप बना दिया, ठीक है। फिर कोई somebody wants to say something, okay, तो इस तरह से अगर कोई और किसी तरह से किसी के जो डिफरेंस है किसी में, तो वो कहते हैं यार ये तो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, तो उसको हम उस जगह नहीं देंगे, या ये इसको प्रमोट नहीं करेंगे, इसको रिवॉर्ड नहीं करेंगे। तो वो कहने की कोशिश कर रहा है कि डिफरेंसेस को आप डाइवर्सिटी में तो डिफरेंसेस आपको लोगों के यू हैव टू रादर सीक मोर पीपल विद मोर डिफरेंसेस। लेकिन होता क्या है कि ये तो सिर्फ डिफरेंसेस को यूज कर करके उनको एज अ डेफिशिएंसी बता के और उनको अपने हिसाब से फिर ट्रीट कर देते हैं। द डिफरेंसेस आर इंटरप्रेटेड एज वल्नरेबिलिटीज एंड दे वर कंसीडर्ड टू बी मोर कंप्लायंट एंड मैल्यूएबल टू मैनेजरियल डिमांड्स। तो इन्होंने कहा कि भाई डाइवर्सिटी जो है ये बहुत ही एक सिलेक्टिव वे में है, और इससे तो सिर्फ एग्जिस्टिंग पावर रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज रिफ्लेक्ट होते हैं, दैट्स इट। तो ये कह रहा है कि भाई ये डाइवर्सिटी डिस्कोर्स आप कुछ भी कर लो, लेकिन जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है उस तरीके से ये
और कुछ नहीं होता, सिर्फ ये पावर रिलेशंस रिफ्लेक्ट होते हैं मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच। फिर रिटेल केस स्टडी बाय दिस इज जस्ट एज इंस्ट्रक्टिव इन रिवीलिंग द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है कि अब एक तरफ आपको कहा जाता है कि आपको सबको ट्रीटमेंट सेम करना है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट सबको सेम करना है तो आपको लेकिन उनकी इंडिविजुअल नीड्स के अंदर घुसना पड़ेगा, उसके लिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये सेमनेस डिफरेंस, ये पैराडॉक्स हो गया, ठीक है, सेमनेस डिफरेंस पैराडॉक्स। ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे सपोज करो कि आपको कहा है भाई ये दो एम्प्लॉई है, ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, आपको इनको सेम ट्रीट करना है। अरे लेकिन सेम ट्रीट करने के लिए भी आपको उनकी इंडिविजुअल नीड्स में देखना पड़ेगा, विच अगेन विल रिक्वायर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। दिस इज द सेमनेस डिफरेंस पैराडॉक्स। और यस शुभांगी, So this paradox is true for both equal opportunity and diversity, or just नहीं, ये डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। Okay. ये डाइवर्सिटी की बात। Overall, within the workplace, diversity approaches might encourage a rethinking of policy and review of practices from which ethnic minority employees might benefit. It is, however, misguided. तो ये कह रहा है कि डाइवर्सिटी से हम बोल सकता है कि ऐसा हमें एनकरेजमेंट मिले कि हम एक नई पॉलिसी निकालते हैं जिससे एथनिक माइनॉरिटी को बेनिफिट हो, लेकिन ये ठीक नहीं है सोचना कि डाइवर्सिटी विल डिलीवर इन वेज वेयर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कुड नॉट। Diversity discourses are not constructed to confront power relations, dominant ideologies, or organization goals. They do not tackle the deep structural problems. Indeed, as these commentators have noted, there is a tendency for diversity discourse to be underpinned by a business case rationale, which is dangerously flawed. तो ये कह रहा है कि डाइवर्सिटी को तो लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ टाई कर देते हैं, बिजनेस केस रेशनल के साथ टाई कर देते हैं, जो कि एक बड़ा फ्लॉड अप्रोच। तो बेसिकली इज सेइंग दैट डाइवर्सिटी डिस्कोर्स जो चल निकला है, तो इससे भी कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ मैनेजमेंट और उनके जो पावर रिलेशन होते हैं इसी को रिफ्लेक्ट करता है, और जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने हिसाब से जो डिफरेंसेस होते हैं उनको यूज करके किसी को प्रमोट करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, और बिजनेस इंटरेस्ट यहाँ पे बिजनेस केस आ जाता है, उस हिसाब से वो डाइवर्सिटी को चलाते हैं। तो विच इज अ फ्लॉड वे ऑफ रनिंग इट। ओके, डाइवर्सिटी ऑन इट्स ओन मेरिट इज डजंट रियली वर्क हियर, तो अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो बेसिकली इसने यही कहा है कि भाई डाइवर्सिटी अप्रोचेज आई थी इक्वल अपॉर्चुनिटी का वो करके कि उसको बेटर कर लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये देखो इजी क्वेश्चन है इसमें, विच आर फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेमनेस डिफरेंस। अब सपोज करो आपको पैसेज अगर बहुत अच्छे समझ में नहीं भी आया, तो आपको क्या करना चाहिए कि जहाँ पे सेमनेस डिफरेंस, कभी कभी तो क्या होता है कि जैसे आप पैसेज पढ़ रहे हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। जैसे जैसे ही इसमें एक इस तरह का कहीं पे भी पैराडॉक्स वगैरह की बात हो ना किसी नाम से, तो आप समझ लो कि एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर आना है। तो सेमनेस डिफरेंस क्या पैराडॉक्स है, वो तो वो मुश्किल नहीं समझना है यहाँ से। अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा हुआ है ना, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि लाइन मैनेजर्स स्ट्रगल टू कम टू टर्म्स विद द अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन इन ट्रीटिंग एवरीवन द सेम व्हाइल आल्सो रिकॉग्नाइजिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज व्हिच माइट रिक्वायर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो इसको देखते हुए हमें कौन सा ऑप्शन है, बहुत ही क्लियर ऑप्शन है जो सही है, वो क्या है? सी। सी नहीं सॉरी सर, बी है ना भाई, इंडिविजुअल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज हु शुड बी ट्रीटेड इक्वली डिमांड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। यस सर, बी 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 है ना भाई, इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और कुछ दिया ही नहीं हुआ यहाँ पे। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको ऐसा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर अपनी नजर नहीं भटकानी, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में देखना है जहाँ पे ये पैराडॉक्स बताए गए, और वो बहुत क्लियरली बताया है कि आपको अगर सबको सेम ट्रीट करना है तो फिर भी आपको उनके डिफरेंसेस में तो घुसना पड़ेगा। दैट इज द पैराडॉक्स। ओके ओके, चलिए, आई होप दिस वाज क्लियर। Which of the following is not a shortcoming of diversity approach as understood from the passage? तो इसमें से जो है 3 तो शॉर्टकमिंग्स हैं और एक नहीं। Deep rooted structural issues that put ethnic minorities at a disadvantage in organizations are still not addressed. ये तो बताया हुआ है इसमें, देखिए आप। Overall, within the workplace, diversity might encourage a rethink of policy and a review. It is, however, misguided to believe. तो ये साफ साफ इसने बोल दिया यहाँ पे कि ये जो एथनिक माइनॉरिटी को जो है बेनिफिट की बात हो रही है इसमें, वो नहीं हो रही है, मतलब नहीं होती है। तो दिस इज, इट इज अ शॉर्टकमिंग, सो दिस इज नॉट द आंसर। इट डजंट अपेंड द एग्जिस्टिंग काउंटर प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल आइडियोलॉजीज। तो वो कहाँ पे दी हुई है, ये लिखा हुआ है कि डाइवर्सिटी डिस्कोर्सेस आर नॉट कंस्ट्रक्टेड टू कन्फ्रंट पावर रिलेशंस,
dominant ideologies or organizational goals. तो doesn't append means doesn't turn around. Append means उल्टा करना. ओके, अगर ऐसा खड़ा हुआ है कोई तो उसको append means ऐसा कर देना. तो ये जो अगर काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसीज ऐसी खड़ी हुई हैं तो आप तो उसको सीधा नहीं कर पा रहे हो. यू आर नॉट एबल टू append, which is correct. So this is a shortcoming. So this is not the answer. The diversity discourse makes management the final voice on policies and practices. देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे कि control of policies and practices has always resided with management, but diversity extends this to cover the discourse of equality. तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोल ऑफ पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो है मैनेजमेंट के साथ में ये इस पर्टिकुलर अप्रोच की का चैलेंज. इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सिटी अप्रोच. ओके, इट इज द प्रॉब्लम दैट हैज बीन एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ शॉर्टकमिंग एज अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज. वी कैन कीप इट. मैनेजर्स टास्क्ड विद इंप्लीमेंटिंग दिस कुड रीइंफोर्स स्टीरियोटाइप्स. ये तो ऑलरेडी इसने बताया ही हुआ है, ठीक है, कि मैनेजर जो है वो स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स कर देते हैं. ओके, वो उसने ये दिया हुआ है कि मैनेजर्स रिसोर्टेड टू स्टीरियोटाइप्स. तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर सी हो. ओके, बताइए. ए ऑप्शन. देखो ए ऑप्शन कहता है कि डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इश्यूज दैट पुट एथनिक माइनॉरिटीज एट अ डिसएडवांटेज इन ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टिल नॉट एड्रेस्ड. तो ये कह रहा है ना, ओवरऑल विद इन द वर्कप्लेस डाइवर्सिटी अप्रोचेस माइट एनकरेज अ रीथिंकिंग ऑफ पॉलिसी एंड अ रिव्यू ऑफ प्रैक्टिसेस फ्रॉम व्हिच एथनिक माइनॉरिटी एम्प्लॉइज माइट बेनिफिट. तो ऐसा हो सकता है. इट इज हाउएवर मिसगाइडेड टू बिलीव दैट डाइवर्सिटी विल डिलीवर इन वेज दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज कुड नॉट. तो ये बोल रहा है ऐसा हो सकता है कि डाइवर्सिटी से आपको लगे कि एथनिक माइनॉरिटी एम्प्लॉइज बेनिफिट हो जाएंगे, लेकिन ये मिसगाइडेड है बिलीव करना कि इट विल डिलीवर. तो इसलिए ये इससे हो गया. हाँ, The issue that I had with A was I was not able to understand that why they've added structural issues here, because I don't think that's mentioned along with the minorities in the last passage. So I marked A. ये लिखा हुआ ना वैसे, they do not tackle deep structural problems. So I thought these problems are the organizational goals because that is what is talked in the line before this. Like this idea was not clear to me कि structural और deep rooted जो minority का है वो related है. नहीं तो आपने इसको इससे कंपेयर किया. हाँ, this I understood. अब सी आपने समझ में आ गया, but मुझे एक मतलब ए मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ से हमने इसको इन्फर करा है. नहीं, यही से इन्फर करा है ना हमने यही से इन्फर करा है पूरे लास्ट पैराग्राफ से. तो इसमें डीप सीटेड स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं. सी अल्टीमेटली एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम डीप सीटेड स्ट्रक्चरल इश्यूज ना, कि वेदर वी आर नॉट एबल टू मेक इट हेल्प द माइनॉरिटीज. दिस आल्सो हैज इट्स रूट्स इन द फैक्ट दैट देयर आर डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज, डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स. तो ये तो एक जड़ है डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो हर इशू को रेज कर रहा है, हर प्रॉब्लम को वो रेज कर रहा है. तो उसी में ये भी आ गया. इस तरीके से क्या देख सकते. ओके, शताक्षी को कुछ प्रॉब्लम थी इसमें, बोलो. यस सर, मुझे बी का एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया था. इसका बी ऑप्शन एक्सप्लेनेशन. नहीं, बी में ये बोल रहा है ना, डजंट अपेंड. मैंने समझा दिया ना, अपेंड मींस उल्टा करना. ठीक है, मतलब कि अगर कोई चीज खराब है तो उसको सीधा कर देना. तो ये जो खराब है काउंटर प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजी, ये मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, they are not constructed. These are not constructed to confront power relations, dominant ideologies. ये सब जो आइडियोलॉजीज हैं काउंटर प्रोडक्टिव हैं. ये इनको ये ठीक नहीं कर रहा ना. इनको ये ठीक क्या कर रहा है, यही तो बोला इसने. They are not constructed to confront all of this. That means they are not setting these right. Append means to set something right. Okay? Yes, sir. All right. Author's central concern in the passage is alleviated by which of the following statements? देखो उसकी जो मेन कंसर्न यही है ना कि जो लास्ट पैराग्राफ में बताइए उसने, डीप रूटेड इश्यूज हट जाएं, वो ही नहीं हट रहे. तो ये इसमें करेक्ट आंसर है कि डीप डाइवर्सिटी कोर्सेज albeit through but imperfect could lay the foundation for a change in mindset that addresses deep rooted issues at organization.
बस देखो इसमें सब कवर हो गया, तो इसलिए इसमें ए इज द राइट आंसर। ओके, Zanoni and Jansen's illustration of how managers treated the diversity courses elucidates that. उसमें हमने देखा कि ये जो मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, they conclude that diversity is conceived in a very selective way with reference to the productive process in specific organization context. In this way, these clearly reflect existing power relation between this. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल इश्यूज की कोई बात नहीं हो रही, इसको हटा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉइज ऑफन एग्रीड विद प्री एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप, ये तो आप और स्टीरियोटाइप को स्ट्रेंथन कर रहे हो। The definition of diversity as employed at an organization level is quite myopic. ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, डी करेक्ट आंसर है इसमें। Individual differences could be exploited for organizational profit if managers are in charge of diversity discourse. मतलब आप ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। Okay, they is conceived in a very selective instrumental way with respect to these statements. और ये जो यहाँ पे इसने पूरा दिया हुआ है कि how such differences could be deployed in relation to organizational goals. Managers they interviewed resorted to stereotypes to explain differences and were interested only in how such differences could be deployed in relation to organizational goals. तो आप मतलब अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप जो डाइवर्सिटी डिस्कोर्स है इसके थ्रू आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों के डिफरेंसेस, अपना उल्लू सीधा करना। मतलब आपको किसी को कहीं पे लेट्स से अपॉइंट करना है, किसी को कोई रोल देना है, किसी को प्रमोट करना है, किसी को डिमोट करना है, किसी को और कुछ करना है, तो आप क्या कर रहे हो कि जो डिफरेंसेस है उसको यूज कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। So you are not looking at diversity the way it should be looked at. You are only using it to as a tool to exploit, okay, people for organizational benefit. अगर मैनेजर जो है वो मैनेजर इस तरीके से उसको मिसयूज कर रहा है, वो एक तरह से ये बता रहा है। नहीं, डिफरेंस बिटवीन ये थोड़ी बता रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉइज एग्रीड विद प्री एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप्स, ये थोड़ी बता रहा है। देखो आप एक चीज समझो, एक मैनेजर अगर डिफरेंस को यूज कर रहा है स्टीरियोटाइप स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो एग्री करते हैं उससे। मतलब ऑथर इज रादर चैलेंजिंग दिस पॉइंट ना, दैट मैनेजर्स आर यूजिंग द डिफरेंसेस टू reinforce the pre-existing stereotypes. So this is how it is wrong. He is not saying that it agreed. ये तो उल्टा हो गया ना, ये तो मतलब आप एग्री कर रहे हो मैनेजर से। If you are marking B, then you are agreeing with the managers. तो जो आप फ्लॉ इसमें बोल रहे हो मैनेजर्स का है, आप तो उसको एंडोर्स कर रहे हो। तो ज़नोनी और जेनसेंस वो थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि आपने डिफरेंसेस को जो है वो रीइंफोर्स करके स्टीरियोटाइप आपको एक्सप्लॉइट करते हो, इसलिए बी एलिमिनेट हो गया। सर बी का मीनिंग क्या है? हाँ, बी का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली ये ऑप्शन का? बी का मीनिंग ये है, देखो कि सपोज करो कि एक मेल एम्प्लॉई है कहीं पे, एक फीमेल एम्प्लॉई, ठीक है। अब आपने एक दिमाग में स्टीरियोटाइप बना रखा है कि दिस फीमेल कैन नॉट डू सेल्स, तो इसको हम सेल्स में नहीं डालेंगे। ये क्या है? एक स्टीरियोटाइप। अब अगर मैंने एक मैं मैनेजर हूं और मुझे किसी एक मतलब मुझे सेल बढ़ाने को कहा गया है, तो मैं सिर्फ मेल्स को ही रिक्रूट करके और मेल्स को ही उन पोजीशन में डाल रहा हूँ। देखो यार, ये जो डिफरेंस है ना इनका, ठीक है, ये बेसिकली एज अ स्टीरियोटाइप, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये स्टीरियोटाइप है, मैं कहूंगा देखो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि यार फीमेल दे आर नॉट गुड सेल्स पीपल, दे कैन नॉट ट्रैवल, दे हैव इश्यूज एट होम, दे हैव ब्ला ब्ला ब्ला, देयरफॉर आई एम नॉट पुटिंग women in charge of my sales. So I am using that difference to reinforce the stereotype. जबकि ऑथर बोलता है डाइवर्सिटी डिस्कोर्स ये होना चाहिए कि आपके पास में सेल्स में you should have females also who add a different perspective, you should have males also, you should have people from different race, maybe origin also, maybe background also, then you will get the benefit of diversity. लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप जो डिफरेंस है इन दोनों के उसको जस्टिफाई कर रहे हो स्टीरियोटाइप्स को, और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट या आप अपने गोल अचीव करने के लिए इस तरह से उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। जैसे ये यहाँ पे बता रहा है ना, अब आप इसको फिर से पढ़ो।
managers resorted to stereotypes to explain differences or were interested only in how such differences could be deployed in relation to organizational goals. तो वो मैनेजर क्या कर रहा है कि वो ये देख रहा है कि यार ये देखो ये मेल फीमेल का डिफरेंस है, या कि कोई और रोल है, एचआर है, बोला यार एचआर में तो वुमेन अच्छी होती हैं, दे हैव अ बेटर एम्पैथी, दे कनेक्ट मोर विद पीपल, तो इसलिए हम वुमेन को एचआर में डाल देंगे, मेल को नहीं डालते वो। अब सी, तो दे रिसोर्टेड टू स्टीरियोटाइप टू एक्सप्लेन डिफरेंसेस, वर ओनली इंटरेस्टेड इन हाउ डिफरेंसेस कुड बी एम्प्लॉयड डिप्लॉयड। इन सम केसेस differences were interpreted by managers as deficiencies of skills। वही देखो ये इसमें तो सेल्स की स्किल नहीं होती वुमेन में तो यार, ठीक है, and therefore provided a managerial rationale for not appointing, promoting, rewarding it। In other differences were interpreted as vulnerability। यार देखो यार ये तो vulnerable, ये तो कमजोरी है इसकी, ठीक है, और उसके बाद में उसको धमकाया गया, ठीक है, कि देखो आप मान लो अपना, तो दे आर मोर कंप्लायंट एंड मैलिएबल। तो इस तरह से हरकतें होती हैं, तो ये कह रहा है। आई होप दिस इज लिटिल क्लियर। ये एग्जांपल से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आई। यस सर। चलिए, तो ये हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पैसेज पे। अब इसके मैं देखो डेप्थ में नहीं घुस रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि साइंस को एक तरफ हम जो है उसको हम साइंस को हम रेवियर भी करते हैं, ओके, बट दूसरी तरफ उससे हम डरते भी, ओके। अब ये एक फॉस्टियन पैक्ट है कि फॉस्टियन क्या होता है, तो अब हमें नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि साइंस ने हमारे लिए सबसे ज्यादा चीजें चेंज की है, ट्रांसफॉर्म कर दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी इट इज द वेरी नोशन दैट ह्यूमन डायरेक्टेड चेंज व्हेन पीपल साइंस सो ट्रबलिंग। नो पीरियड हैज मोर पेनिट्रेटेड बाय साइंस देन दिस, येट नो पीरियड हैज बीन मोर अनईजी। तो हम एक तरफ तो साइंस पे इतने डिपेंडेंट है और दूसरा तरफ हम उससे इतना अनईजी भी फील करते हैं। सो वी हैव अ फॉस्टियन पैक्ट। ये फॉस्टियन पैक्ट का एक बैकग्राउंड है। ये फॉस्ट करके एक जर्मन कैरेक्टर था जर्मन लिटरेचर में, तो उसने डेविल के साथ में एक पैक्ट किया था, ठीक है। वो पैक्ट उसने ये किया था कि भाई मैं अपना सोल तुम्हें बेच दूंगा, तुम जो है मुझे नॉलेज, पावर और वेल्थ और ये सब चीजें दे दो। तो इसको मतलब ऐसे मेटाफोरिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी ने शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपना लॉन्ग टर्म एडवांटेज गिरवी रख दिया, ओके। उसको अगर शॉर्ट टर्म गेन आपको करना है, जैसे हम धरती को अभी एक्सप्लॉइट किए चले जा रहे हैं, नेचर को किए चले जा रहे हैं, ठीक है, फॉर आवर शॉर्ट टर्म बेनिफिट, वी आर इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दैट। सो वी कैन से दैट वी हैव गॉट इनटू अ फॉस्टियन पैक्ट। सो दैट्स अ फॉस्टियन पैक्ट, ओके। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि साइंस और खास करके बायोलॉजी में कि हम जिस तरीके से टेम्परिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा डेंजरस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। और फिर भी बायोलॉजिकल थियोरीज के लिए हमारे पास में इतना सपोर्ट, तो ये वही बताने की कोशिश कर रहा है कि फिर इसने नेचर की बात करी है, ठीक है, कि नेचर जो है हम जैसे ओके, दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हॉस्टिलिटी टू बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन शुड नॉट सरप्राइज अस। What many people fear is a science that disturbs their moral compass, upsetting traditional ideas, a science that promises new forms of control, new types of mastery. तो इस तरह की people fear करते हैं साइंस से। What many people are drawn to is a science that provides science and comfort and turns an explanation about human condition into a parable about fate. तो किस तरह की साइंस को हम डरते हैं और किस तरह की साइंस को हम एम्ब्रेस करते हैं, वो इसमें बताया। और कॉमन थ्रेड्स इन हॉस्टिलिटी टू बायोलॉजिकल साइंस एंड yearning for evolutionary are a debased view of what it means to be human. In secular civilization, nature plays the role of German arbiter. Today, nature is rapidly turning into a new deity. तो हम क्या कर रहे हैं कि नेचर को एक नया सा भगवान जैसे ट्रीट करते हैं और ह्यूमंस और ह्यूमन एक्टिविटी को हम लो एस्टीम में होल्ड कर रहे हैं और नेचर को डीफाई कर रहे हैं कि नेचर मतलब क्या होता है। देखो आज अब इसमें थोड़ा सा ऑथर का जो पर्सपेक्टिव है वो अभी जो हम जो सोचते हैं जनरली जो एक थॉट है उससे थोड़ा अलग है। जैसे हम सोचते हैं कि यार हमें नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, नेचर खत्म हो रहा है, नेचर ये है वो है। तो वो कह रहा है कि यार देखो आप जो ह्यूमन बींग्स नेचर को आपने इतना डीफाई करके रखा हुआ है, ठीक है, और नेचुरल को आप रिगार्ड करते हो मॉरली सुपीरियर। तो अब इसके कारण क्या है, इसके कारण आप यू क्रिटिसाइज द साइंस दैट सीम टू डिफाई द प्योरिटी ऑफ नेचर एंड टू लॉर्ड साइंस दैट सीम टू मेक अस मोर नेचुरल। तो जो हमें चीज नेचुरल बनाती है जैसे ऑर्गेनिक है ये, उसको तो आप बहुत अपलॉड करते हो, और जो आपको जो लगता है कि नेचर को खराब करके उसको आप हेट करने लगते हो। तो बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी दैट थ्रेटन्स टू ट्रांसफॉर्म रिलेशनशिप विद नेचर इज ऑफन सीन एज अननेचुरल ब्लास्फेमस। तो जो बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी हमारी रिलेशनशिप नेचर के साथ में ट्रांसफॉर्म करती है उसको आप ब्लास्फेमस कहते हो। तो अब ये उसको काउंटर कर रहा है ये आदमी
ये कहता है हैव द राइट टू काउंटरैक्ट इररिवर्सिबली द एवोल्यूशनरी विजडम ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो क्या हम जो एवोल्यूशनरी विजडम है बिलियंस ऑफ ईयर्स का, उसको काउंटरैक्ट करने का हमारे को राइट है? ईच जनरेशन मस्ट बी अलाउड टू स्ट्रगल विद ह्यूमन नेचर एज इट इज गिवन टू देम। तो जैसा भी हमें मिला है उससे हमें स्ट्रगल करके जो भी हमें उसको डील करने के लिए चाहिए वो हमें करने देना चाहिए, and not with the irreversible biological results of their forebears actions. तो मतलब ये है कि ऑथर इस वाले जो पर्टिकुलर पार्ट में ही इज ओके विथ व्हाटएवर टेम्परिंग दैट इज बीइंग डन बाय साइंस विथ नेचर और विथ ह्यूमंस। ही इज सेइंग दैट कि हमें अपने जो फोरबेयर्स मीन एंसेस्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं उसी के साथ स्ट्रगल नहीं करनी देनी चाहिए, हमें अपने तरीके डिवाइस करने चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर नेचर से जो आज है डील कर सकें। तो व्हाटएवर इज बीइंग डन दैट शुड बी कंसीडर्ड ओके, नॉट समथिंग कि दैट इज अगेंस्ट द नेचर और दैट इज अगेंस्ट द मॉरल कॉम्पस और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे एंड में थोड़ा सा इसने ये जो इन लोगों के व्यूज दिए हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नेचुरल को हम ऐसे मानते हैं कि वो सबसे महान चीज है, सबसे भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यूमन बींग्स आज अगर डील कर रहे हैं उसको किसी भी तरीके से नए नए साइंटिफिक को करके, तो दैट इज ओके, दे शुड बी अलाउड टू डू दैट। ऐसा करके ये कह रहा है, क्या नाम है, अरविंद ओके, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। व्हाई डू वी फील दैट रिलेशनशिप विद साइंस इज अ फॉस्टियन पैक्ट? तो अब ये फॉस्टियन पैक्ट अगर हमें नहीं भी पता है, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, तो उसमें फिर भी यहाँ से हमें समझ लेना चाहिए कि no period has been more penetrated nor more dependent, yet no period has been more uneasy. This is a Faustian pact. Okay, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए कि while this also, तो वो कॉन्ट्रास्ट हमें किसमें मिल गया? बी में, right? While science has given us immense power, it has disturbed our moral compass. इसलिए इसमें बी करेक्ट आंसर। Okay. In the passage, the author does what? He examines the implication of scientific process. He justifies the need to examine under voices society is concerned. Presents the society's view of science as a double-edged sword. इसमें दोनों तरफ से बताया उसने कि एक तरफ तो हम साइंस से एनामर्ड भी हैं, we like science, we are dependent upon science, and on the other side we hate it, we fear it also. So it's a double-edged sword. So he has given this as the answer. Okay, do we agree? Yes, sir. Yes, sir. Great. According to the author, what kind of science is not feared by people? अब ये देखो यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ पर से मिल जाएगा आपको। What many people fear is a science that disturbs their moral compass. So science that realigns their moral compass. He is a straightforward thing. Okay. Then science that upsets traditional ideas of man and nature. Upsetting traditional ideas of man and nature. We fear this. Therefore, this is not correct. Science that results in new types of mastery over human destiny and nature. Science that promises new forms of control over nature. New forms of mastery over human destiny. ये भी दे दिया इसने, करेक्ट आंसर सी हो गया। साइंस दैट एट्रीब्यूट्स द कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी टू डेस्टिनी, ये दिया है इसने यहाँ पे। What many people are drawn to is a science that provides science and comfort and turns an explanation about the human condition into a parable about fate. मतलब fate means destiny. जो ह्यूमन कंडीशन है ये एक आपकी डेस्टिनी है। मतलब जैसे एक साइंस है वो आपको ये बता रही है कि भाई आप जो भी हो रहा है आपका, ये आपकी डेस्टिनी। इस तरह की साइंस जो है हमें people are drawn to, they don't fear that, right? So C becomes the easy answer here. Straightforward है ये तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट आ गया है ना? Yes, sir. Which of the following can be inferred? ये देखो easy question, definitely false. इसमें जो हमारे मिस्टर एरविन शारगेफ हैं, एरविन शारगेफ लास्ट में कह रहे हैं कि man generation should be allowed to struggle with the human nature as it is given to them and not with the irreversible biological results of their forebears. जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है इसमें कि एरविन शारगेफ asserts that new generation must struggle with the irreversible biological results. तो वहाँ not लिखा था, यहाँ पे लिखा है with the, तो ये definitely false, right? So I hope कि इसमें से आपके अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक पिछले वाले में, डिफिकल्ट कौन से थे, इजी कौन से थे, तो इसमें ये इजी था, ठीक है। दिस वाज ऑफ कोर्स अ लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने में
ऑथर सेंट्रल ये मॉडरेट आई वुड कॉल इट, और दिस इज ऑल्सो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आई वुड से। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें मुझे सभी एक मॉडरेट या इजी ही लगे थे। ये तो बहुत ही इजी था, साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, और ये भी इजी था, अगर आपने ये पकड़ लिया तो ये पढ़ लिया। ठीक है, ये दोनों, ये थोड़ा मॉडरेट हो सकता था, कॉस्टियन पैक से हो सकता है लोग इधर उधर भटक जाए, एंड दिस आल्सो वाज मे बी मॉडरेट। 13 क्वेश्चन हाउ कैन वी एलिमिनेट, नहीं 13 क्वेश्चन में हाउ कैन वी एलिमिनेट, अच्छा नहीं देखो इसमें आपको 13 क्वेश्चन में ये समझना है कि क्या बोल रहा है। देखो इस तरह का जो पैक्ट क्या होता है, देखो पैक्ट इसमें आपको चलो क्वेश्चन नहीं पता, एग्री, बट व्हाट इज द पैक्ट? पैक्ट मींस एग्रीमेंट। ठीक है, जब दो लोगों के बीच में या दो एंटिटीज के बीच में एग्रीमेंट होता है तो क्या होता है? यू गिव अप समथिंग एंड यू टेक समथिंग अवे। एक एग्रीमेंट जो होता है, जब भी लोग ऑर्गेनाइजेशंस या आई मीन एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट, वेदर इट इज अ सेल एग्रीमेंट, वेदर इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनीवेयर, okay, there are terms and conditions, and obviously you will not find any agreement or contract where both the parties get exactly all what they want. ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक एग्रीमेंट में there are conflicting terms। तो एक आपको मिलता है, एक आपसे ले लिया जाता है, एक दूसरे को मिलता है, दूसरा इससे ले लिया जाता है, ये नेगोशिएशन भी होता है। ठीक है, इधर हमने आपकी बात सुन ली, उधर आप हमारी बात सुन लो, आप I mean that's how agreement works, right from the most common ones to the most complicated ones। तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये एक पैक्ट है, ये एक एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट में अब क्या है कि भाई नो पीरियड हैज बीन, इसके प्रीसीडिंग देखते हैं, नो पीरियड हैज बीन मोर पेनिट्रेटेड बाय साइंस, नो मोर नॉट मोर डिपेंडेंट ऑन इट, येट नो पीरियड हैज बीन मोर अनईजी अबाउट इट, नॉर फेल्ट मोर दैट द रिलेशनशिप विद द साइंटिफिक नॉलेज इज अ फॉस्टियन पैक्ट। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे एक तरफ आप कुछ उससे ले रहे हो और एक तरफ दे रहे हो, तो एक तरफ आप इतने डिपेंडेंट भी हो और दूसरी तरफ आप इतना अनईजी भी फील कर रहे हो। तो इस तरह की रिलेशनशिप जो आपकी है साइंस से, वो एक फॉस्टियन पैक्ट। दैट मीन्स यू हैव काइंड ऑफ टेकन अ शॉर्ट टर्म एडवांटेज आउट ऑफ इट एंड गिवन इट द लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज, समथिंग लाइक दैट। आई होप बाकी के जो ऑप्शंस हैं, देखिए ओवर द पास्ट 50 years we have depend upon science more and more. This is not a fact. This is fine. This statement is correct. I'm not denying that this is not correct. Science penetrated every aspect of our life, calling accepted facts into question. ये भी ठीक है. Scientific theories have continuously revolutionized. This is also okay, but this is not a fact. Okay, this is not something that indicates that there is a fact. 14th question में A कैसे eliminate किया? In the passage he examines the implications of scientific progress for man and nature। देखो पूरे पैसेज को पढ़ के आपको ये समझ में आया कि इसके दो एंगल, एक तो आपको जो बेनिफिट दे रही है बायोलॉजी, साइंस और ये सब चीजें, और दूसरी तरफ आप जो उससे डर रहे हो, अनईजी हो रहे हो, और ऐसा लग रहा है आपको कि नेचर के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, तो हमारे हाथ से चीजें जा रही हैं। तो दोनों तरफ है ना, तो ये तो एक वन साइडेड व्यू ही है उसका। He examines the implications of scientific progress for man and nature. This is just one way view. Implications of scientific progress क्या है? इसमें आप ये नहीं बता रहे हो कि साइंस के ऊपर आप कितना फैसिनेटेड भी हो, कितना डिपेंडेंट भी हो, कितना लाइक भी करते हो, यू आर ड्रॉन टू इट, ये तो नहीं बता रहे हो आप इसमें। ओके, चलिए लेट्स लुक एट नाउ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, इन द थर्ड क्वेश्चन जो था कि विच साइंस इज नॉट फियर्ड, कौन सा ये? हाँ वो भी। हाँ सर, मैंने तो मतलब वो क्या था, रियलाइंस मॉरल कंपस, ये सोच के कि मतलब वो वापस उसको अपनी पुरानी स्टेट में लेकर आ जाएगा। नहीं, अरे आपने यहाँ से पढ़ना चाहिए ना इसको। What many people fear is a sign that disturbs, disturb मतलब क्या होता है? Realign। अच्छा। See, any kind of disturbance is realignment, हाँ। right? So realignment does not mean that it is in a positive direction. Realignment could be in a negative direction also. ओके सर। है ना? ओके सर। तो ये यहीं से आ जाएगा। ऑलराइट, चलो अब हम पहला वाला देख लेते हैं। पहले वाले को क्विकली देखते हैं। पहले वाले में ये कह रहा है कि जो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि हिस्ट्री को जो पहले समझा जाता था कि इंसान जो है ये इसके ऊपर डिवाइन का ही इंटरवेंशन है, मतलब जो भी कुछ हम करते हैं वो ऊपर भगवान ने उसके लिए प्लान बना के लाया है। ठीक है, द ग्रेट थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल सिस्टम विच प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर डिटरमिनिंग जनरल प्लान ऑफ हिस्ट्री अ प्रायोरी
तो लेकिन अब क्या हुआ, रेनासा एज में जब मिडिल एज खत्म हो गई, तो मिडिल एज करने के बाद रेनासा एज आ गई, तो हिस्टोरिकल स्टडीज के ऊपर एक लोगों ने फ्रेश अप्रोच शुरू कर, और उसमें एक रेनासा व्यू था कि रिटर्न टू ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं अब दे वर नॉट ड्रॉन इनटू सिग्निफिकेंस इन कंपैरिजन टू डिवाइन प्लान। मतलब ये कि जैसे पहले से बोला था कि देखो यार सब कुछ तो भगवान का वो है, डिवाइन प्लान है, आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है वो भगवान के। लेकिन बाद में रेनेसां जब पीरियड आ गया तो ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ हिस्ट्री शुरू हो गया, और उन्होंने कहा कि अब देखो हम इंसान जो है वो ऐसा भगवान का प्लान नहीं है, इंसान के अंदर पैशंस हैं, इंसान के अंदर इम्पल्स हैं, इंसान इन द क्रिएशन ऑफ पैशन एंड इम्पल्स, एंड देयरफॉर वी नीड टू रीलुक एट द हिस्टोरिकल स्टडीज। ओके, तो अब यहाँ पे ये बताया कि इसमें क्या हुआ कि जो हिस्टोरियोग्राफी थी वो चेंज हो गई, और एक फ्रांसिस बेकन करके 17वीं सेंचुरी के जो एक बहुत ही रिनाउंड यू कैन से फिलोसोफर, यू कैन से साइंटिस्ट, पहले फिलोसोफर साइंटिस्ट वगैरह सब एक ही होते थे। देखो आप लोगों को मैंने, इफ यू रिमेंबर, आई हैड गिवन यू द लिंक टू अ यूट्यूब वीडियो सीरीज कॉल्ड क्रैश कोर्स इन फिलोसफी। तो उसमें से कितने लोगों ने उसको अभी तक कितने वीडियो देखे हैं? अदिति ने देखे 7-8 वीडियो, बाकी लोगों ने किसने देखे, कितने देखे हैं? 6 देखे हैं, चलो, और 1-2 ही देखे आपने, क्यों, वाई? ये सिर्फ 10-10 मिनट के वीडियो है, यू कैन डू 3-4 एट अ गो, और 2-2 भी आप देखोगे तो 1 महीना देखोगे आप बताए हुए, यू शुड हैव कंप्लीटेड इट। इसी तरह से एक और चीज बताता हूँ आपको आज मैं, एक है क्रैश कोर्स ऑन साइंस, ऑन हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो अब देखो पहले क्या था ना, जब ये साइंस वाइंस और साइंटिफिक मेथड, तो ये तो 17th-18th सेंचुरी से आया है। उसके पहले तो फिलोसफर जो होते थे वो सभी कुछ काम करते थे, वही साइंस को मतलब बेसिकली वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, नेचुरल लॉज को, वही यूनिवर्स के लॉज को। आई विल सेंड द लिंक, री सेंड द लिंक। ओके, ये देखो अगर आप ना ये दोनों चीजें कर लोगे, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि इट इज मच मच बेटर देन रीडिंग अ बुक ऑन दीज इश्यूज, बिकॉज बुक को पहली बार तो पढ़ने में वो मोटिवेशन लाना, प्लस उसको उतना पूरा कैरी करना, प्लस एक बुक आपको वो सब देगी नहीं देगी, उसके बजाय ये जो है दीज आर 46 रफली वीडियोस, दीज आर 47 वीडियोस, इनटू 10 कर दो, 10 मिनट्स ईच वीडियो, 460-470 मिनट्स मींस 8 आवर्स वर्थ ऑफ इट, राइट? दिस आल्सो वुड बी 8 आवर्स वर्थ ऑफ इट। तो आपको, हम जो बहुत सारे जो लोगों के नाम पैसेजेस में पढ़ते हैं, हॉब्स, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, बेकन, कांट, वोल्टेयर, इतने जितने सारे नाम हम पढ़ते हैं, वेदर फिलोसफर हो, साइंटिस्ट हो, कि हिस्टोरियन हो, कोई भी हो, वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम सुनते रहते हैं, तो आपको ये सब क्लैरिटी आ जाएगी इसमें, बहुत सारी जागरण आपकी क्लियर हो जाएगी पैसेजेस में। तो इसको आप जो है वो पढ़ लेना, मतलब देख लेना एक बार ये, और दो दो करके आप देखते रहोगे दिन में क्विकली 10-10 मिनट में, तो क्या दिक्कत? ओके, सो प्लीज डू दैट। आई मीन आई एम नॉट सेइंग रियली फ्रॉम वीआरसी पर्सपेक्टिव, ये आपके एक इट इज एन एजुकेशन। ओके, दिस इज गोइंग टू लास्ट यू फॉर लाइफ टाइम। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो बेकन था, इसने कहा कि भाई 3 रेल्म्स है, पोएट्री, हिस्ट्री और फिलोसफी, और इसमें इमेजिनेशन, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग चलती है। तो अब ऑथर कहता है कि देखिए ये जो ये गलत है, कि पोजीशन ऑफ हिस्ट्री जो आप मेमोरी से डिफाइन कर रहे हो ये गलत है, क्योंकि हिस्ट्री अगर अगर मेमोरी से ही रिकॉल हो सकती है तो हिस्टोरियन की तो जरूरत ही नहीं। बात ये है कि हमें हिस्ट्री याद थोड़ी रहती है, हमें याद हमें नहीं रहती, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बेसिकली उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है डेटा से। ओके, बेकन, सो ऑथर ने ये पूरे पैराग्राफ में बेकन के इस पर्टिकुलर चीज को काउंटर किया है कि हिस्ट्री का मतलब है मेमोरी। ओके, वो कह रहा है कि ये तो बहुत गलत है, प्रिकैरियस, डेंजरस है। ओके, रिकवरी ऑफ द पास्ट, नो मेथड्स, उसका जो था उसमें कोई मेथड ही नहीं थे। Bacon's definition is wrong because the past only requires historical investigation so far as it is not and cannot be remembered. If it could be remembered, there is no need of historians. So his own contemporary Camden was already at work, showing how unremembered history would be constructed with data. The question how the historian's understanding works to supplement the deficiencies of his memory was a question that Bacon never asked. तो ये जो पैसेज है इसमें बताया कि हिस्ट्री को कैसे नासा में आते ही एक रीलुक दिया गया, क्योंकि इंसान को एक डिवाइन का वो नहीं माना गया, इंसान को माना गया कि उसके अंदर पैशंस हैं और उसके अंदर इम्पल्स है, दैट्स हाउ ही एक्ट्स, एंड देन हाउ टू हैव अ रीलुक एट द हिस्ट्री। एंड बेकन ने कहा कि भाई हिस्ट्री जो है मेमोरी से बनाई जाएगी, उसने कहा नहीं, ये गलत है, क्योंकि मेमोरी से अगर हो सकता तो हिस्टोरियन की क्या जरूरत है, हमें तो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है साइंटिफिक एविडेंस और डेटा लेके। ओके, सो दैट्स द पैसेज ऑल अबाउट।
अब ये एक बार में मतलब शुरू में आप पढ़ोगे तो इतना क्लियर शायद ना हो, तो इसके लिए क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन में भी, ऐसे पैसेज में भी हमें क्वेश्चन पे चले जाना चाहिए. Man as depicted by Christian thought was different from man as depicted in ancient philosophy because, देखो ancient Christian thought में क्या था? Christian thought में ऐसा था, ये दिखा हुआ है, man as depicted by Christian thought was a creature of passion and impulse. ठीक है, और man as depicted in early was not as depicted by man in Asian philosophy, which is controlling his actions and creating his destiny by the work of his intellect. He was a creature of passion and impulse. ठीक है, तो man as depicted by Christian thought was the former placed importance on human passions while latter placed importance on human intellect. तो ये हमें यहाँ से सीधा सीधा मिल गया, ये नहीं मिला, बताइए, यहाँ से मिल गया हमें सीधा सीधा कि ये वर्क ऑफ इंटेलेक्ट बोलता था और ये क्रिएशन ऑफ क्रीचर ऑफ पैशन और इम्पल्स बोलता था. तो इसमें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही क्लियर इसमें यहाँ पे हमको आंसर मिल गया, राइट. सर ये डी से कैसे डिस्टिंक्ट है? कॉन्सिक्वेंस थोड़ी है, देखो, द फॉर्मर व्यूड हिस्ट्री एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पैशन. हिस्ट्री की बात थोड़ी है, वो बोल रहा है मैन एज डिपिक्टेड बाय क्रिश्चियन थॉट. क्रिश्चियन थॉट में मैन जो है उसको कैसे डिपिक्ट किया गया, शो किया गया है, और एंशिएंट फिलॉसफी में मैन को कैसे शो किया गया. तो हिस्ट्री कहाँ बीच में आ गई? आप ये देखो ना क्या बोल रहे हैं, मैन, okay, for the Renaissance historian was not the man depicted by ancient philosophy. So how was a man depicted by ancient philosophy? He was controlling his actions and creating his destiny by the work of his intellect. So as per ancient philosophy, the man was depicted by the work of his intellect. But the man as depicted by Christian thought was a creature of passion and impulse. तो साफ तो लिखा है इसमें, हिस्ट्री कहाँ बीच में आ गई? ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको, है ना. The former placed importance on human passions, the latter placed importance on human intellect. Okay, it can be inferred from the first paragraph of the passage that, तो फर्स्ट पैरा में ये बता हुआ है कि ये जो ये है कि great theological and philosophical system which had provided a basis for determining the general plan of history a priori had ceased to command assent. मतलब पहले थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल सिस्टम जो थे ये इंसान का डिटरमिन करते थे, ओके, plan. So the a priori determination of general outline of history based on theological system advocated a divine plan. मतलब हिस्ट्री क्या है, वो बोलेगा यार हिस्ट्री कुछ नहीं है, ये जो डिवाइन प्लान, भगवान की जो मर्जी है उसके हिसाब से चीजें होती है. ठीक है, तो हिस्ट्री और कुछ नहीं है, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन थियोलॉजी एंड फिलोसफी. दैट्स व्हाट बिफोर, मतलब बिफोर द रेनेसांस. देखो ये मिडिल एजेस, आपको एक तो ये भी समझना चाहिए, हम कई बार इसमें बारे बात कर चुके हैं कि अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री आप देखेंगे तो 500 एडी से लेके 1500 एडी रफली तक के पीरियड को मिडिल एजेस कहते हैं. ठीक है, और अगर आप 500 बीसी से 500 एडी तक की बात करेंगे तो इसको बेसिकली ग्रीको रोमन कहा जाता है. ओके, तो ये जो बीसी से जब तक 0 तक समझ लो आप, या 100 तक, ग्रीक्स यूज्ड टू बी द प्रीडोमिनेंट पीपल. ओके, जो ग्रीक फिलोसफर्स हुए हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, Greek was a hotbed of philosophy and all of those thoughts during those era. This Greece was ruling. उसके बाद में फिर रोमन्स आ गए 500 एरा तक, 500 एडी तक फिर रोमन्स का राज चलता था. 500 एडी में रोमन्स का डाउनफॉल हो गया. तो 500 से लेके 1500 तक के पीरियड को मिडिल एजेस कहा जाता है. इस टाइम पे जो बाइजेंटाइन, ये जो ऑटोमैन, मिडिल ईस्ट, ये सब जो थे, इन लोगों का राइज हो गया. ठीक है, और 1500 में आके फिर रेनेसां हुआ. ठीक है, रेनेसां में क्या हुआ आपको पता ही है, रेनेसां बहुत बार बात करते रहते हैं. तो इट वाज अ री अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट का पीरियड बोला जाता है. और यहीं से फिर आर्ट, कल्चर और उसके बाद में फिर साइंस वगैरह की जो है वो सब चालू हुआ. गैलीलियो आए और कोपरनिकस आए और ये सब लोग आए, उन्होंने जो भी अर्थ के और जितने भी नेचर के, यूनिवर्स के जो वो थे, वो उनके ऊपर प्रकाश डालना शुरू कर दिया. ओके, दिस इज हाउ द वर्ल्ड हिस्ट्री, यू विल कम अक्रॉस दिस वेरी कॉमनली, मिडिल एजेस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ठीक है, तो ये रेनेसां के टाइम पे, उसके पहले इंसान का ऐसा सोचा जाता था कि यार ये तो डिवाइन वो है, इसमें इंसान का क्या है, जो भी कर रहा है वो इसमें भगवान की मर्जी है, उसका खुद का कोई भी रोल नहीं, इसलिए इसमें ए करेक्ट है. Bacon's idea of history is invalidated by the author's argument that
अभी देखो बेकन क्या बोलता है कि हिस्ट्री जो है वो मेमोरी से होती है, ओके, वेराज ऑथर कहता है कि नहीं भाई मेमोरी नहीं होती उसमें। तो अब ए कहता है हिस्ट्री इज नॉट जस्ट व्हाट आर मेमोरी सर्व्स, वो कहता है नहीं भाई हिस्ट्री तो वही है जो मेमोरी में है ही नहीं, तो इसलिए ये गलत है। कुछ लोगों ने शायद ए मार्क कर दिया होगा इसमें। हिस्ट्री इज द एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन इंटरप्रिटेशन विद द ह्यूमन मेमोरी ऑफ इवेंट्स। नो, ह्यूमन मेमोरी तो है ही नहीं भाई। हिस्ट्री इज क्रिटिकल ओनली बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ ह्यूमन मेमोरी। इसलिए इसमें ये आंसर करेक्ट हो गया कि वो ऑथर ने साफ साफ बोला ना कि हिस्ट्री की जरूरत ही तब है। ओके, Bacon's definition of history and as the realm of memory was wrong because the past only requires historical investigation so far as it is not and cannot be remembered. If it can be remembered, there will be no need of historians. जरूरत ही नहीं historians की अगर उसको याद रख सकते हैं। तो it is critical only because of deficiencies of human. इसलिए इसमें ये करेक्ट है। So हाँ, एक बार देख भी रहा हूँ। हाँ, the option कौन सा? Delhi. Humans' history's primary function is not to record or recall the past as it actually happened. नहीं, ये क्यों लग रहा है आपको? Record तो ठीक है, recall, okay, recall और record the past as it actually happened, ये क्यों लग रहा है? भाई वो ये कह रहा है कि मेमोरी से, ठीक है, रिकॉर्ड और रिकॉल तो करना है हमको, हिस्ट्री का फंक्शन है ये, बट किस तरीके से? बेकन क्या कहता है कि भाई हिस्ट्री जो होती है उसमें आप अपनी मेमोरी लगा दो, जो आपको याद है मेमोरी से वो आप लिस्ट डाउन कर दो, 1 2 3 4, ये हो गई हिस्ट्री। ऑथर कहता है भाई हिस्ट्री जो है, तो ऑथर ये कह रहा है कि हिस्ट्री जो है वो 1 2 3 नहीं है जो आपको याद रहे, बल्कि हिस्ट्री तो वो है जो आपको याद नहीं रहती। तो रिकॉर्ड तो चाहिए हमें, यू हैव टू रिकॉर्ड और रिकॉल, बट ऑन व्हाट बेसिस? यू हैव टू डू इट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा और साइंटिफिकली, क्योंकि मेमोरी आपकी नहीं चलेगी। अगर मेमोरी होती तो फिर जरूरत क्या है हिस्टोरियन की? और एक इंसान की मेमोरी कितनी चल सकती है बताओ? मतलब एक लॉजिक सी बात है ना कि अगर सपोज करो मैंने एक दौर देखा है, मेरी उम्र 60 70 80 साल तक होगी ज्यादा से ज्यादा, तो मुझे 60 70 80 साल के पहले की हिस्ट्री तो याद है, चलो, तो उसके पहले की हिस्ट्री मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे क्या मतलब एक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है क्या हिस्ट्री मेमोरी से? वो कह रहा है ऐसा नहीं है, आपको हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कैसे? बाय डेटा, दैट्स व्हाट ही से। द ऑथर मेंशंस कैम्पबेल्स एग्जांपल। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, ए कैसे एलिमिनेट किया? क्योंकि ए में क्या बोल रहा है वो कि हिस्ट्री में वो भी आएगा मेमोरी प्लस नॉन मेमोरी। यस सर। तो जबकि ऑथर क्या कह रहा है, वो तो मेमोरी बोल रहा है, जो अगर मेमोरी होगी तो वो हिस्ट्री है ही नहीं, वही कह रहा है ना। अच्छा ठीक है ना। इफ इट कुड बी रिमेम्बर्ड देयर वुड बी नो नीड ऑफ हिस्टोरियंस। तो जो मेमोरी में अगर आगे रह गई तो वो तो हिस्ट्री है ही नहीं। ऑथर मेंशंस कैम्पबेल्स एग्जांपल टू बिल्ड ऑन द हाइपोथेसिस दैट। तो ऑथर ने कैम्पबेल का एग्जांपल क्यों मेंशन किया यहाँ पे? तो कैम्पबेल ने already at work in the best Renaissance tradition on the topography and archaeology, showing how unremembered history could be reconstructed from data. Okay, तो ये इसलिए उसने एग्जांपल बताया। तो A says Bacon's contemporary didn't agree, गलत है। History can be rebuilt without memory, ये बताने की थोड़ी, history can be rebuilt with what, ये बताने के लिए है, not to how history can be rebuilt without memory। ये एग्जांपल नहीं लिया उसने कि how history can be rebuilt with data, ये बताना है। The purpose of historical investigation is to reconstruct what cannot be remembered. This looks okay. Historians' understanding supplements the deficiencies of memory. ऐसा नहीं है, okay? ये understanding वगैरह नहीं है. It is to be based on whatever data or fact. Okay, how unremembered could be reconstructed from data. So इसलिए इसमें C करें. Difficult था देखो, मतलब I'm not saying these passages were difficult. They were not at all easy. Questions were also not कुछ क्वेश्चन अब जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से आ गया। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, नो डाउट डिफिकल्ट था। हिज इनवैलिडेटेड, इसमें भी इसमें यस, इसमें ये वाला जो था ना, ये एक मतलब देखो ये काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि खाली मेमोरी, तो इसलिए हम उसको बहुत अच्छे से एग्जामिन नहीं करते, और हम कई बार जैसे ये मार्क कर दिया होगा 1, तो ये भी डिफिकल्ट है। कैम्पटन का एग्जाम्पल मे बी आप बी और सी में कंफ्यूज हो सकते थे, तो अगेन आई वुड कॉल इट डिफिकल्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, मुझे फोर्ड के डी में चीज पूछनी थी, जैसे वहां पे ऐसा लिखा था कि फोर्ड के डी ऑप्शन में, दिल्ली वाले में, कि वहां पे ऐसा लिखा था कि वो डेटा से रिकंस्ट्रक्ट करा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि डेफिशिएंसी मतलब उसको पता नहीं है, और वो
खुद की अंडरस्टैंडिंग से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो फिर वो और आगे उसने डी ऑप्शन का भी बताया ना कि इस नहीं क्वेश्चन नहीं हाउ नहीं द नहीं नहीं नहीं, डी ऑप्शन जो है वो तो ये है, वो हाइपोथेसिस थोड़ी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑथर मेंशंस कैम्पडेन्स एग्जांपल टू बिल्ड ऑन द हाइपोथेसिस दैट, ठीक है। वेराज ये जो आपका है ये क्या कह रहा है? द क्वेश्चन हाउ द हिस्टोरियन अंडरस्टैंडिंग वर्क्स टू सप्लीमेंट द डेफिशिएंसीज वाज द क्वेश्चन दैट बेकन नेवर आस्क्ड। दिस इज नॉट द हाइपोथेसिस. Hypothesis, Bacon's own contemporary was already at work showing how unremembered history could be reconstructed from data. That means the purpose of historical investigation is to reconstruct what cannot be unremembered. ये नहीं है, hypothesis नहीं है. Yes. Okay, so now I'll not go again as deep into this. इसमें क्या है, स्टाइल के ऊपर बात हो रही है और एक आर्ट ड्राइव करके है. यस, क्वेश्चन था किसी का, बोलिए. यस सर, लास्ट क्वेश्चन. क्या हो गया इसमें? सर उसमें मैंने हाइपोथेसिस का मतलब अजम्पशन समझा था. नहीं, तो हाइपोथेसिस अजम्पशन थोड़ी होता है. हाइपोथेसिस तो मतलब जो आप प्रूव करना चाहते हो, समथिंग दैट यू हाइपोथेसिस इज थियरी, ठीक है. हाइपोथेसिस इज थ्योरी जिसको आपको प्रूव करना है, वैलिडेट करना है. तो उसमें वो ये बता रहा ना कि अगर मैंने एक थ्योरी बनाई है कि भाई हिस्ट्री जो है उसको आप रिक्रिएट कर सकते हो अनरिमेम्बर्ड पार्ट को डेटा से, तो उसने कैम्पटन का एग्जांपल इसलिए दिया बताने के लिए कि भाई उसी चीज को तो कर रहा है कैम्पटन, राइट. तो बिल्ड ऑन मीन्स व्हाट? सपोर्ट. तो सपोर्ट द थ्योरी दैट the purpose of historical investigation is to reconstruct what cannot be remembered. इसी चीज को कैम्पटन के एग्जांपल से उसने सपोर्ट किया. यस सर, अंडरस्टूड. ऑलराइट. तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आर्ट होता है, ठीक है, आर्ट की स्टाइल होती है, तो वो स्टाइल को क्या चीज इन्फ्लुएंस करती है या वो स्टाइल किस चीज को इन्फ्लुएंस करती है. तो उन्होंने कहा है कि भाई 3 चीजें होती है, ठीक है. एक तो मटेरियल होता है, एक पर्पस होता है और एक टेक्निक होता है. तो अब इसमें कौन सी चीज किसको इन्फ्लुएंस करती है? ओके, तो ये इस पैसेज में उसने डिस्कस किया है. और उसमें एक सेम्पेरियन कोई होंगे, उनका आंसर दिया उसने कि पर्पस, मटेरियल्स एंड टेक्निक्स चेंज एंड दीज आर द डिटरमिनेंट स्टाइल. ये 3 चीजें जो है स्टाइल को डिटरमिन करती है. मतलब ये 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं और स्टाइल इज अ डिपेंडेंट फैक्टर अपॉन दिस. तो ऑथर ने फिर उसको रिफ्यूट किया. ऑथर का कहना है कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ये जो है आपका गलत है ऐसा कहना, ठीक है. तो उसका फिर उसने कहा है कि भाई रीगल ने एक दूसरा आंसर दिया है. वो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है डायरेक्शन ऑफ कून्स वॉलन, मतलब आर्ट ड्राइव जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और ये बेसिकली आर्ट की जो स्टाइल है उसको डिटरमिन करता है. ये इसने यहाँ पे बताने की कोशिश की. तो इसको मतलब देखो, ये पैसेज इतने से टाइम में और ऐसे समझना बड़ा मुश्किल था. अगर किसी ने किया हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट. इनफैक्ट मैंने भी उस टाइम उसको छोड़ ही दिया था. बाद में जाके इसको फिर थोड़ा ठीक से पढ़ा तो थोड़ा समझ में आया. लेकिन क्वेश्चन सरप्राइजिंगली आर नॉट डिफिकल्ट. ओके, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए तो क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. व्हाई डज द ऑथर कॉल्ड सेम्पेरियंस आंसर एंड अपैरेंट आंसर? तो सेम्पेरियन का आंसर एक अपैरेंट आंसर क्यों बोल रहा है वो? ये बोल रहा है अपैरेंट आंसर क्यों है? क्योंकि सेम्पेरियंस कहते हैं कि पर्पस, मटेरियल और टेक्निक्स जो है ये डिटरमिनेंट्स ऑफ स्टाइल. लेकिन देयर इज एन इंटेलेक्चुअल factor in addition which can be ignored and this is a mistake because it is secondary. तो उसके हिसाब से style means something quite different from what it is meant. Question only has the appearance of being answered. So this solution is useless for us. So Semperian's answer erroneously assumes that style can remain unchanged with changes in purpose, material and technique. तो ये तो नहीं है, ठीक है. Author believes Semperian is mistaken in not considering individual factor. ऐसा भी नहीं है. इसमें बेसिकली डी आंसर यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है इसने कि इट इज क्लियर अकॉर्डिंग टू द आंसर स्टाइल मींस समथिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मेंट इन आवर क्वेश्चन. ठीक है, स्टाइल मींस समथिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मेंट इन आवर क्वेश्चन. दैट आवर क्वेश्चन ओनली हैज द अपीयरेंस ऑफ हैविंग द आंसर. तो यहाँ पे इसका आंसर छुपा हुआ है क्योंकि उसने डी में ले दिया. द कांसेप्ट ऑफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू सेम्पेरियन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट अकॉर्डिंग टू ऑथर. इसमें डी करें. एक्सक्यूज मी सर, फिर इसका तो ए होगा ना? मतलब मैंने क्या था इसी 5th क्वेश्चन का ए क्यों होगा? नहीं, क्योंकि सर उसमें मतलब ऐसा दिया हुआ है
कि जो सेम्पेरियन आंसर कर रहा है वो मतलब इन डिटर्मिनेंट्स के मतलब जो डेफिनेशन है वो अलग ले रहा है, तो अगर हम अपने केस से देखें तो वो ऐसा आंसर करेगा कि ये सब चीजें अनचेंज रहेंगी, तो नहीं वो नहीं ये नहीं चीज नहीं ऑनेस्टली नहीं, एक मिनट देखो आप सर, जो सेम्पेरियंस हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो पर्पस, मटेरियल और टेक्निक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हाँ और ये डिटरमिन करते हैं स्टाइल। हाँ दैट मींस इफ यू वेरी दीज देन स्टाइल चेंजेस। तो स्टाइल कैन रिमेन अनचेंज, ये थोड़ी बोल रहा है। तो ये तो गलत ही है ना स्टेटमेंट। वो देखो आप वहां पे पढ़ो उसको क्या बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि is that purpose, material and techniques change and that these are determinants of style. ठीक है, and there is an intellectual factor in addition which can be ignored, and this is a mistake because it is secondary. If one asks further what these three variables depend on, one comes to the result that since blind chance is not admitted, the independent variable is the material culture, class materialism. तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है इसमें कि ये जो तीनों चीजें हैं, ओके, ये स्टाइल को डिटरमिन करती है, तो इसलिए ये गलत है। दिस इज नॉट फैक्ट, दिस इज नॉट अ फैक्ट। हाँ, मॉक में आंसर ए है। हाँ सर, और मतलब मैंने पैसेज पढ़ा था तो भी मैं मतलब इन्फर ए ही कर पाई थी। सर असाइनमेंट में भी यही है। हाँ? नो सर, डी है नहीं सर, आंसर। डी दिया हुआ है। अरे असाइनमेंट में ए दिया है क्या? यस गलत सर, दिया ये पे असाइनमेंट सॉरी, माय मिस्टेक, आई थिंक आई हैव गिवन इट रॉन्ग। सॉरी सॉरी, अगर असाइनमेंट के अंदर ए लिखा हुआ है ना तो देन इट इज रॉन्ग। ओके सर। मैंने ए लिखा है क्या वहां पे? हाँ नहीं, इसमें देखो ना आप, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? यहाँ पे तो डी लिखा है। तो आई डोंट नो हाउ इट गॉट माय मिस्टेक्स। ओके, माय मिस्टेक। आई मीन आई डोंट नो व्हाई इसमें मैंने ए तो गलत है, बहुत क्लियर गलत है। ओके सर। ठीक है, ए गलत है। ये शुभांगी? So I understood why D is the answer, but how do we negate B? B. Yes. The author believes that Samperians are mistaken in not considering individual factor. ठीक है, बट ये देखो, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। जिसको कहते हैं ना ट्रू, एक ऑप्शन जो है Yes, sir. ट्रू बट इररेलेवेंट। व्हाई इज इट इररेलेवेंट? बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि इसको अपैरेंट आंसर क्यों कह रहा है। तो अपैरेंट आंसर क्यों कह रहा है वो, ये देखो। For it is clear that according to the answer, style means something quite different from what it means in our question, and that our question only has the appearance of having been answered. This is not linked to this. ये जो mistake है, ठीक है, there is an intellectual factor. This is the mistake because it is secondary. That's fine. That's okay. लेकिन ये आंसर हमारी जो स्टाइल जो मैं समझता हूँ, जो ये समझता है, इससे डिफरेंट है। दैट इज व्हाई दिस इज द अपीयरेंस। इससे ऐसे देखो ना आप उसको। ओके? हाँ सर, understood. सो सर आपने जो आंसर की भेजी है ना, उसमें शायद तक एलआर और पॉइंट के हैं। इसमें ये आंसर का सेक्शन 2 सेक्शन 3 है। क्या सर आपने जो आंसर्स भेजे हैं ना, हाँ, उसमें शायद तक सिर्फ सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के आंसर्स हैं, सेक्शन 1 के आंसर्स है ही नहीं। नहीं, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो बात कर रहे हैं जो गूगल फॉर्म है उसमें। ओके। गूगल फॉर्म में मैंने ये अगर दिया है तो मतलब आई चेक, बट वो गलत है। ठीक है, अगर ये मैंने करेक्ट बताया तो मैं चेक कर लूंगा। ओके, अकॉर्डिंग टू रीगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन आर्ट ड्राइव एंड पर्पस, मटेरियल एंड टेक्निक। तो आर्ट ड्राइव जो है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि रीगल ने क्या कहा? रीगल हिमसेल्फ ऑफर्ड एन ऑपोजिंग आंसर। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज्ड to use a rough general expression. Independent variable is the direction of the art drive. Punkt Solon is art drive. The purpose, material and technique also change, but they are negative factors, mere frictional coefficient which have to be subtracted in order to recognize the pure direction of art drive. तो यहाँ से मिल जाएगा ये। देखो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। बताइए क्या होगा? हाँ, the change in purpose, material and technique interfere when trying to understand the direction of this. ये नेगेटिव लिखा है ना, इसमें नेगेटिव फैक्टर है, मतलब वो हमें अंडरस्टैंडिंग करने में बीच में आते हैं, आड़े हाथ आते हैं। तो दे आर नेगेटिव फैक्टर्स, दे आर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट्स व्हिच हैव टू बी सबट्रैक्टेड। तो देखो, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आंसर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हैं। तो ये करेक्ट आंसर सी हो गया। Which of the following So why will is reveal? D wrong? Which one? D for Delhi.
द डायरेक्शन ऑफ आर्ट डिटरमिन्स, नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ है आपको, ये कैसे आपने इंटरप्रेट कर लिया, ये बताइए। एक मिनट, आप इसको पढ़ो ढंग से। Regal offered an opposing answer. The independent variable is the art drive. This is art drive. Okay. The purpose, material, and technique also change, but they are negative factors. So does it mean that ये उसको influence कर रहा है क्या? Is there a direct correlation? No, ठीक है sir. क्या? नहीं है ना? Determines the changes थोड़ी है. They also change, but in a negative way. So therefore तो they are मुझे not. नेगेटिव फैक्टर्स का मतलब तब समझ में नहीं आया था। नहीं, मतलब ये है कि ये एक तरह से जैसे कर रहा है वो उल्टे तरीके से चलते हैं, कि ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है। Which of the following will Regal most probably agree with regarding Kunstwollen? तो Kunstwollen क्या है? Kunstwollen is art, the art drive. The direction of Kunstwollen changes when there is a change in the style of art. No, no, ये तो उल्टा बता रहा है ना? The direction of Kunstwollen is independent of the styles of art. यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। The independent variable, the direction of Kunstwollen is independent of style. हाँ, ये तो देखो, इसको हम एलिमिनेट करेंगे, ये वाला एलिमिनेट हो गया। The direction of Kunstwollen helps in identifying variations in this, ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहा है। Explain why the changes. So ये elimination से आपका आ गया कि this is independent of styles of art. Okay, because this is an independent variable. इसने ये बता ही दिया ना कि independent variable is the direction of Kunstwollen. That means this is independent. तो style of art से ये influence नहीं होता, तो इसलिए ये भी आंसर हो गया। Which of the following can be inferred from the third paragraph? The third paragraph में क्या लिखा है देखिए। This concept of style as something grasped intuitively and described through highlighting individual style is by very nature extremely erratic. Purely empirical depiction of styles in the proper sense, it stops with merely outwardly description. तो इस तरीके से हम उसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, वो उसको कैप्चर नहीं करेगा साइंटिफिक तरीके से, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो डिफाइनिंग concept of style in a scientific manner will result in, नहीं, concept of style should be defined independent, should be defined. Defining a concept only through its visible manifestation will not be comprehensive. B becomes the correct answer. ये जैसे बोला ना, it stops with merely outward description. तो आप अगर इस तरीके से उसको डिफाइन करोगे तो वो उसका comprehensive description नहीं है। All right, so a long session, almost 2 hours. What's the final call? Discussion, कुछ any closing comments? ये वाला तो ये पैसेज तो आपको छोड़ देना चाहिए था, मतलब बहुत क्लियर है। यस शुभांगी बोलिए। सर आई हैव 2 क्वेश्चंस। वन, जब आप बीए अटेम्प्ट करते हैं उससे पहले यू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ योर आरसीज? नो, यू डू इट आफ्टर डूइंग बीए? नॉट एट ऑल। मैं पहले सीधे बीए पे पहुंच जाता हूं, सीधे मेरा बटन दबता है 17 क्वेश्चन। ओके, एंड सर जैसे कि हमें पता है कि इसमें आरसीज हमारे लिए चैलेंजिंग थे, सो व्हाट विल बी अ बेटर ट्रेड ऑफ? अगर हम कम आरसीज कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम सारे क्वेश्चंस सही नहीं कर पाएंगे, तो हमें गेस लेना चाहिए कि वी शुड ट्राई, मतलब एमिंग फॉर, मतलब अगर जैसे कि मोस्ट ऑफ द आरसीज दैट आई डिड आई गॉट 2 राइट, बट मैंने चारों एमकैट में चारों को मार्क करा था। सो अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने चाहिए जब हम कम मतलब आपने चारों पे हाथ मारा था, ये बोल रहे हो? हाँ, नहीं, वो गलत है, वो गलत, क्योंकि फिर shouldn't do that. Because देखो, जैसा मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि आपको अगर समझो 4 आरसी में से लग रहा है कि यार तो 3 डिफिकल्ट आ गई या चारों ही डिफिकल्ट आ गई, तो आपको बहुत केयरफुली 2 चूज करके उनको डू जस्टिस टू देम। ओके, डोंट ट्राई टू। अब इसमें अब हाँ, अब आप बोलोगे यार मैंने तो ये वाली पकड़ ली, कोड सोना वाली, तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, आपने अगर ये पहले पकड़ ली तो और इसमें बहुत टाइम लगा दिया तो गड़बड़। ठीक है, दैट आई एम वेरी श्योर। इसको आपको मतलब इसको कूल माइंड से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो, है ना। तो अब मतलब आपको ये कि आप 2 किस तरह से सिलेक्ट करो और 2 के साथ में जस्टिस करो, दैट्स द ओनली वे आउट। ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप? आई होप देयर वर सम लर्निंग्स। प्लीज डोंट फील डिसहार्टेंड और एनीथिंग। देखो, कुछ लोग जो हैं अभी, आई मीन not all, but some of you have joined very recently and started doing these assignments and stuff like that. Don't expect कि कोई ऐसा
overnight, we will become champions. It takes time. These are all very difficult. It's not easy. इतने सारे हमारे सालों की जो रीडिंग नहीं है उसको भी तो हमें थोड़ा सा भरपाई करनी पड़ेगी. But please keep doing the assignments and everything regularly and trust me. देखो ये जो इस तरह की ये वाली जो मॉक थी ना ये कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है एक्चुअल कैट का. Okay, as I was describing in the beginning itself. तो आपको ऐसा कोई disheartened होने की जरूरत नहीं. And learn from your mistakes. Don't commit those same mistakes again and again. That is the only learning. Okay, thank you and have a good day. Bye bye. Thank you, sir. हाँ बोलो माना. कुछ नहीं कहा कुछ. अच्छा okay चलो. All right. Okay, bye bye.